So when I met People Baba, he with a genuine concern asked me, आप क्यों पौधा लगाना चाहते हैं? वैसे ही इसमें बहुत लोग काम कर रहे हैं और ऐसे लोग हैं जो कुशल और अनुभवी है. I mean, not that he was trying to dissuade me, but was trying to put me on the right path. He said, यदि आपका पर्यावरण की सेवा करने का मन है, तो आप वो करिए जिसमें आप निपुण है. लोगों को एनवायरनमेंट से सेंसिटाइज कराइए, स्कूलों में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाइए और हमारे जैसे लोगों की बात दुनिया तक पहुंचाइए. Taking a leaf out of what he said, I am honored to invite People Baba to our Rotary Club of Bombay West. People Baba started planting trees at the age of 11 in Pune as a hobby, gathering his friends, classmates, passerby, and strangers. Today, Give Me Trees, his trust is the largest community-based voluntary tree planting and conservation movement in India, with more than 11,500 volunteers. People Baba is planting trees in various public and private places, macro and micro spaces, gardens, roadsides, highways, expressways, road medians, schools, colleges, universities, military stations, mountains, and riverbanks. You name it, and People Baba and his folks are there to ensure a green cover. He has planted 20 million, 2 crore trees, trees that are surviving. So when I met People Baba, he spoke to me in Ekdam Shuddh Hindi. And later I realized he is a postgraduate in English literature, born into an illustrious Jain family of businessmen and academics, a voracious reader himself, a noted environmentalist. सुनिए पीपल बाबा की कहानी उन्हीं की जुबानी. वेलकम पीपल. सारा वर्ड द टूर करके आए भाई अपनी कार्देश मुंडा. I think some of the other voices are heard. So I request the host to mute everybody else except People Baba. Yeah. May I? Yes. Okay. Please. नमस्कार. I think मेहता साहब ने तो सारे कुछ बता दिया आपको. He's already given you an introduction and still I'll very quickly summarize how the life has been with People Trees for me. And later on, I would like, after talking to you for about 20-25 minutes, I would like to take questions. क्योंकि जब क्वेश्चन आंसर सेशंस होते हैं तो इंटरैक्टिव होता है, तो थोड़ा सेशन में जान आती है, अच्छा लगता है. सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए. तो जैसा प्रवीण जी ने बताया आपको, एक्चुअली कहानी कुछ इस तरह से शुरू हुई. आई हैड अ वेरी नॉर्मल लाइफ. बस इतना था कि मैं चंडीगढ़ में पैदा हुआ और वहाँ आफ्टर बीइंग बोर्न इन चंडीगढ़ टू आर्मी ऑफिसर, माय फादर, now we know him as Brigadier K.C. Jain, and he was working in the Chandigarh military area as a pediatrician. He was a child specialist, army doctor. तो हमारी पैदाइश जब चंडीगढ़ में हुई तो there was some disturbance on the border, and father को 65 ऑपरेशन में भी वहीं थे, 62 ऑपरेशन में भी वहीं थे वो. So he had to leave, and my mother, she was quite young. She was just 18 years of age, and she was studying in Punjab University at that time when I was born. But luckily and very fortunately for me, मेरी नानी जो इलाहाबाद में रहती थी, नारायणी आश्रम में तिलियरगंज गंगा जी के किनारे रहती थी, she was called to help out my mother because my mother was very young and she didn't know how to take care of the baby. That was the first baby. बस वहाँ मेरी किस्मत पलट गई. तो मेरी नानी हमारे पास आई और जब मैं पैदा हुआ PGI हॉस्पिटल चंडीगढ़ में, तो उन्हीं की निगरानी में हमारी पैदाइश शुरू हुई, परवरिश शुरू हुई. और देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल लेक इन चंडीगढ़, उसका नाम सुखना लेक है. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू, आप काफ़ी जो ट्रैवलिंग कम्युनिटी है वो चंडीगढ़ को जानती होगी. तो सुखना लेक में एक 150 साल पुराना एक पीपल का वृक्ष है. इट्स 150 years old, more than 150 years old. It's a qualified certified heritage tree labeled by the Chandigarh administration.
उसके नीचे बैठ के हमने ना जाने कितनी कहानियां सुनी अपनी नानी के जुबान। ऑफ कोर्स आई वाज वेरी यंग एंड पहले 3, 4, 5, 6 साल जो होते हैं, मुझे कहानी एक भी याद, मेरी नानी मुझे बताया करती थी कि जब तुम 1, 1.5 साल के थे मैं तब से तुम्हें कहानियां सुना रही। मुझे कहानी कोई भी याद नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो संस्कार जो, कहीं ना कहीं वो फाइल कहते हैं ना, कहीं ना कहीं वो जाके कहीं सर्वर में वो बैठ गई वो बातें। She used to talk a lot about water. She used to talk about rivers. She used to talk about lakes. She would talk about forests. She would talk about. उसके बाद फादर की हमारे पोस्टिंग पूना में हुई। किरकी नाम की एक जगह है, खड़की मिलिट्री स्टेशन बोलते हैं उसको, and he was posted there, and I went to an elementary school over there by the name Spices Memorial Elementary School. वहां पे हमें एक टीचर, तो कहते हैं जीवन में जो होता है कि आपको कोई ना कोई ऐसे गुरु मिलते हैं, कोई ना कोई ऐसे श्रृंखला बनती है, कुछ एनलाइटन मास्टर्स मिलते हैं, कुछ रियलाइज सोल्स मिलते हैं। ये जो हमारी मैम थी, ये एक क्रिश्चियन लेडी थी, मिशनरी से आई थी। जाफना नाम की जगह है श्रीलंका में, इट्स अ वेरी डेंस फॉरेस्ट में पैदा हुई थी वो, और उन्होंने दुनिया देखी। वो अमेरिका में भी पढ़ा चुकी थी, यूरोप ट्रैवल कर चुकी थी, एंड वन ऑफ अ लास्ट असाइनमेंट्स करके वो हमारे को स्कूल में पढ़ाने आई थी। शी वॉज एन ओल्ड लेडी, मिसेस विलियम्स उनका नाम। वो इतनी कहानियां हमें सुनाती थी, बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज पे, इंसेक्ट्स के बारे में बताना, डायनासोर्स के बारे में बताना, हिस्ट्री के बारे में बताना, जियोलॉजी के बारे में बताना, वोल्केनोस के बारे में बताना, साउथ अमेरिका और अर्जेंटीना, ब्राजील, अमेज़न फॉरेस्ट के ऊपर कहानियां सुनानी, नाइल रिवर के ऊपर, मिसिसिपी के ऊपर। मतलब एक 4th ग्रेड में एक बच्चे को जब इतना एनसाइक्लोपेडिक और एकेडमिक आप ड्रिलिंग करते हैं, सिर्फ मेरी नहीं लेकिन मेरी पूरी क्लास की, और ऐसा नहीं है कि उसका इम्पैक्ट सिर्फ मेरे ऊपर हुआ, मेरे बहुत सारी क्लासमेट्स जो थे, they were affected by what she said. 2 साल वो हमारी क्लास टीचर है, 4th and 5th grade। 77 में 26th of January 1977, I just walked into her, जो टीचर्स कॉमन रूम होता है, हमारी रिपब्लिक डे परेड की हाफ डे था उस दिन, तो उस दिन स्कूल उस तरह स्टडीज वाला नहीं था, we just went there in uniform and थोड़ा फ्लैग होइस्टिंग वगैरह हुई, जनगण मन हुआ, परेड हुई छोटी सी। I walked into her room and I asked her, मैम ये जो आप इतना हमें पर्यावरण एनवायरनमेंट के बारे में बताते रहते हैं, तो मैं सिर्फ 10-11 साल का बच्चा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? और थे तो फौजी के बच्चे, और पापा को हमेशा एट वॉर देखा था, कभी वो चाइना बॉर्डर पे थे, नीफा में पोस्टेड थे, अरुणाचल में, मेघालय में उन्होंने काम किया था, लोंगावाला की जब लड़ाई हुई थी उसमें थी, डोगराई बैटल में वो थे, मतलब ही वाज अ वॉर हीरो, वेरी हाईली डेकोरेटेड वॉर। तो घर का जो जज्बा था वो एक देश प्रेम और उसका था। My Nana ji had been a freedom fighter, lot of people in my family. तो मैम ने एक बात कही, कहते बेटा एक चीज याद रखना, इससे बड़ा देश प्रेम और कुछ नहीं हो सकता कि आप पर्यावरण के लिए आप काम कर रहे हैं और इस धरती की मिट्टी के लिए काम करें, इसके हवा पानी के लिए काम करें। हर इंसान में पेट्रियोटिज्म का मतलब ये नहीं होता कि वर्दी पहन के आप बॉर्डर पे जाके खड़े हो गए, ठीक है? क्योंकि उस समय मैं चाहता था, क्योंकि मेरे पास आज खैर समहाउ किस्मत ऐसी रही कि फुल टाइम ट्री प्लांटर बन गए, लेकिन उस समय एक ही चीज जुनून था कि बड़े होके आर्मी ऑफिसर, आर्मी ज्वाइन करेंगे, इन्फेंट्री ज्वाइन करेंगे, कमांडो बनेंगे, देश की सेवा करेंगे, जो भी जैसे हमारी फैमिली का माहौल। तो जब टीचर से बात करी तो मैम ने वो जो 1.5 घंटे की बात हुई मेरी मैम से, मुझे आज तक उनकी कई बातें याद है। उन्होंने 1.5 घंटे में जो बात करी, 11 बजे का लगभग टाइम था, 11 और 12:30 के बीच की बात है, 26 जनवरी
1977 की बात। तो उन्होंने कहा बेटा एक चीज याद रखना, पेड़ों से कहानी शुरू होती है, पेड़ों पे खत्म होती है। पेड़ों से कहानी शुरू होती है, पेड़ों पे खत्म होती है। तो इसका जब मैंने उनसे पूछा इसका अर्थ क्या हुआ, तो वो कहते हैं कि देखो आपकी जो पहले भी हमारे पूर्वज रहे वो कौन थे, अगर हम मान लें चार्ल्स डार्विन की थ्योरी भी मान लें कि वो ग्रेट एप्स रहे, तो वो वृक्षों पे रहते थे, जंगलों में रहते थे, वनों में रहते थे, और धीरे धीरे वो पेड़ों की कैनोपी से नीचे आए। दे बिकेम हंटर गैदरर्स, दे ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इन गैंग्स, ट्राइब्स। धीरे धीरे वो नदियों के पास आए, सिविलाइजेशन का शुभारंभ हुआ। कुछ केव्स में चले गए, कुछ केव डेवलपर्स बन गए, उन्होंने फिर टूल्स बनाए, पॉन्ड्स, लेक्स, और पानी के पास आकर बस गए। फिर वहां शहर और गांव बसने शुरू हो गए सिविलाइजेशन के नाम। और जैसे जैसे इंसान पेड़ों से दूर जाता रहा, जैसे जैसे इंसान, दिस वाज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, जैसे जैसे वृक्षों से दूर जाता रहा, वो अपनी नाभि से दूर जाता रहा। जो उसका जन्मदाता था, उसका जंगल, उसका जन्मदाता था वो पत्ते, उसका जन्मदाता था वो फल, उसका जन्मदाता था वो वृक्ष जो उसको प्राण ऊर्जा देते। लेकिन वो धीरे 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 दूर होता रहा, दूर होता रहा, दूर होता रहा। फिर कुछ ऐसे महापुरुष भी आए जिन्होंने वनस्पति चेतना के साथ दोबारा मनुष्यों को जोड़ने की कोशिश की, जैसे गौतम बुद्ध आए, महावीर आए, और हमारे बहुत सारे ऋषि मुनि आए। उन्होंने सनातन धर्म की नींव रखी, वेद पुराण लिखे, उपनिषद लिखे गए। अगर आप शास्त्र भी हमारे पढ़े तो उसमें पूरे के पूरे जो हमारे एलिमेंट्स हैं वही हमारे परमात्मा है, वही हमारे गॉड्स हैं। इट वाज जस्ट अराउंड 3rd century AD, after death of Christ, 3rd and 4th centuries, when idol worship came out, मंदिर बनने शुरू हुए, ठीक है, and we started giving some shape to the idea of God. चाहे हमने उनको शिव कहा, हमने उनको कोई भी, जो भी है ना, तो आपके एलोरा टेम्पल बने, आपके बहुत सारे पूरे भारतवर्ष में हमारे मंदिर बने। तब तक धीरे 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 हम जंगलों से दूर हटते चले गए। अब ये जो पूरी प्रोसेस है, ये तो मैं आज समरी में बता रहा हूँ, बट इट टुक अ लॉन्ग टाइम फॉर मी टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट माय टीचर एंड व्हाट माय ग्रैंडमदर इज ट्राइंग टू टेल। वो एक बड़ी सिंपल सी बात कहने की कोशिश कर रहे थे कि वृक्षों का साथ मत छोड़ो। ये आपके पूर्वज, ये आपके ग्रैंड पेरेंट्स, ये आपके एंसेस्टर्स। जब तक आप इनकी छत्र छाया में, तब तक आप सेफ हैं। जैसे ही वृक्ष आपसे दूर होते हैं, जैसे ही जंगल आपसे दूर होते हैं, वन दूर होते हैं, वो ये नहीं कहते थे कि कभी शहरों में मत रहिए। ना टीचर ने कहा, ना ग्रैंडमदर ने कहा, ना आगे चल के हम आश्रमों में जहाँ रहे, मैं छोटे से गुरुकुल में भी पढ़ा, हमारे आचार्य जी भी रहे, उन्होंने भी ये बातें कही। कभी भी किसी ने ये नहीं कहा कि तुम डेवलपमेंट के कोई अगेंस्ट नहीं था, या पक्के मकानों में रहने के अगेंस्ट नहीं था, लेकिन वो बार बार एक बात कहते थे कि वृक्षों का साथ मत छोड़ो, ठीक है। सो एनीवे, आई केम बैक होम एट अबाउट 3 o'clock के 3 बजे के करीब। जब मैं लौटा तो मैंने अपनी नानी को बताया कि ऐसे मेरी मैम कहती, तो उन्होंने मुझे 4 आने 25 पैसा, आप में से बहुत लोग जानते होंगे उस वक्त द पावर ऑफ 25 पैसा, आज तो 25 पैसा मिलता भी नहीं, तो उस जमाने में 1977 की बात। So I bought 9 saplings and I planted them that day. And my first coach was my grandmother, and my second coach was definitely my Mali Kaka. He taught me how to hold a khurpi. He taught me how to dig pits. He told me the whole science behind manuring, vermicomposting, कैसे आप लीफ मोल्ड को यूज करते हैं, कैसे मल्चिंग करते हैं, कैसे पानी देना है, कैसे उसको लुक आफ्टर करना है। Second day I planted, I know, I have written records, so 23 saplings I planted.
The next day was a Monday, so I planted 56 and it went on. साथ साथ में मेरे दोस्त जुड़ते रहे, तो मेरी क्लास के भी बच्चे आए और मैं हॉकी बहुत खेलता था। उस जमाने में हम हॉकी खेलते, उस जमाने में हम क्रिकेट नहीं खेलते थे, हॉकी खेलते, बहुत खेलते थे हॉकी। तो मेरी पूरी हॉकी टीम जो थी वो सब साथ में जुड़ गई। बच्चों को एक एक्सक्यूज मिल गया कि घर से बाहर निकल। हमने एक छोटा सा इको क्लब बनाया, उसका नाम था गिव मी ट्रीज इको क्लब, बच्चों के लिए। और हमारा सिर्फ एक काम था, क्योंकि हमारी नानी और हमारी टीचर ने एक चीज बात कही और वो आज भी लागू होती है, और बहुत ही प्यारी बात उन्होंने कही, बेटा 1000 प्रॉब्लम्स की दुनिया में, हजारों प्रॉब्लम्स है, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग कह लो, उस वक्त क्लाइमेट चेंज नाम की कोई चीज नहीं थी, ट्रैफिक कंजेशन कह लो, पोल्यूशन कह लो, धुआं कह लो, ये हम कार्बन की बात करते हैं, जो भी बड़ी बड़ी बातें, पेड़ों की संख्या को बढ़ाओ, पेड़ों की संख्या को बढ़ाओ। अगर पेड़ों की संख्या को बढ़ाओगे तो आपकी 1000 टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो। बात दिमाग में बैठ गई, तो जी चले पेड़ों की संख्या बढ़ाने। सो डैड फौजी थे, उन्होंने कहा चलो बेटा और कुछ नहीं करा, चलो एक तरीके की एक्सरसाइज ही है ना। लोग सपोर्ट इस तरह से करते थे कि लोगों को बड़ा अम्यूजिंग लगता था। उस जमाने में कोई पेड़ लगाने वाली कोई फैशन में नहीं था, क्योंकि उस वक्त कोई सोशल मीडिया नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, कुछ नहीं था, तो कोई ये नहीं था कि कोई एनवायरमेंटलिज्म के ऊपर बात कर रहा है, एक्टिविज्म पे, कुछ था ही नहीं, सब कोई नहीं था, कुछ भी नहीं था। बस कभी कभी सुना करते थे, एक सुंदरलाल बहुना जी हैं, वो उत्तराखंड में रहते हैं, और एक सुना करते थे नाम के मोहन धारिया जी, वो उस समय पूना में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे, उस वक्त महाराष्ट्र के काफी अच्छे नाम एनवायरमेंटलिस्ट में, और उनको काफी नेशनल अवार्ड्स भी मिले। बस ये 2 नाम हम सुना करते थे, बाकी पूरे भारतवर्ष में पर्यावरण से रिलेटेड कोई बात ही नहीं। तो हमने पेड़ लगाने शुरू किए, और उसमें कभी लोगों ने मजाक भी उड़ाया, कभी लोगों ने ये भी कहा अरे ये तो पूरे शहर को खोद डालेगा, क्योंकि पहले ही साल में हमने 16,000 पेड़ पूना डिस्ट्रिक्ट में लगाए, पहले ही साल में 1977 दिसंबर तक हम 16,000। और मेरे पास आज भी वो डायरीज हैं, और एक एक सड़क का नाम है, एक एक वो टेलीफोन पोल का नाम है, एक एक लैंडमार्क का नाम है जहां मैंने वो पेड़ लगाए। और मैं जब भी पुणे जाता हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स आज भी पुणे में ही, रिटायरमेंट के बाद मेरे फादर पुणे में सेटल हो गए, वहीं एक सालों के ब्याह नाम की जगह है पुणे में, वहाँ सेटल हुए। मैं जब भी जाता हूँ मैं पेड़ों को मिलने जाता हूँ, चतुर सिंगी सिम्बाइसिस के पास, हनुमान टेकड़ी, ये जितना भी पीछे के सेनापति बापट रोड, फिर जो खड़कवासला रोड, पाषाण रोड, मुल्शी डैम, ये सब जगह खूब पेड़ लगाए। हमने ज्यादा लगाए नीम और पीपल। तो ये पीपल बीच में कहां से आया? पीपल इसलिए आया, ये पहले साल की ही बात बता रहा हूँ, क्योंकि हर बार पैसे मांगते थे घर वालों से, नर्सरी से जाके जी हमको पौधे खरीदने। तो नानी ने समझाया, देखो बेटा एवरी टाइम यू कांट बी आस्किंग फॉर, है ना, तो कुछ ऐसा सीखो। उन्होंने नर्सरी बनाने से कहा, प्लांट नर्सरी। तो हमने बहुत सारी स्पीसीज के सीड्स इकट्ठे करने शुरू किए। एंड पुणे, एज यू नो वेरी वेल सिंस यू ऑल स्टे इन मुंबई, कि बहुत अच्छा रेन शेडो एरिया है, बट इट हैज सफिशिएंट रेनफॉल ड्यूरिंग मॉनसून। तो सीड भी कलेक्शन बहुत अच्छी होती है। एंड देन आई हैज टू बीच में ट्रैवल टू खंडाला, वो वाली जो सड़क है लोनावला खंडाला वाली, वहां पर पुराने वृक्ष ढूंढते थे, जंगल में जाते थे। पूना के आसपास में छोटे छोटे पैचेस थे, मुल्शी डैम, पाषाण डैम के पास बहुत सारे, टाटा पावर का एक प्रोजेक्ट चल रहा था, तो वहाँ बहुत बड़े पुराने वृक्ष थे। तो वहां से बीज उखाड़ के लाते थे, क्योंकि नानी ने समझाया था जितना पुराना वृक्ष होगा उतना अच्छा जीन होगा, मतलब उसकी जो जेनेटिक्स होंगी सीड्स की उतनी अच्छी होंगी। सो नाउ आई डोंट वांट टू गेट इनटू द बॉटनिकल पार्ट ऑफ इट, बट यू नो इस तरह से। सो एक उसमें भी उन्होंने एक बात कही कि देखो बेटा, मनुष्य का जो जीवन है वो, तुम ठीक है, तुम बहुत सारी स्पीसीज लगाने की कोशिश करो, लेकिन तुमको एक चीज का ख्याल रखना होगा कि अपना मैच जो है, अपनी फ्रीक्वेंसी
तुम एक स्पीसीज के साथ सेट करो। उस वक्त हम जहां तक जानते थे कि banyan was the national tree of India, तो मैं चाहता था कि बड़ लगाऊं। My first choice was the banyan tree because it was the national tree of India. And I used to see कि जब भी रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट्स होते थे तो बहुत ज्यादा चॉपिंग होती थी। लेकिन एक वृक्ष ऐसा था जो मैं देखता था सब लोग डरते थे उससे। They used to treat it like a ghost tree, and that was the peepal tree. कोई मुझे लगाने ही नहीं देता था। किसी के बंगलों के पास, किसी के फार्म हाउस के पास, कहीं सड़क पे लगाए, किसी कॉलोनी में लगाए, तो वो दे यूज्ड टू शो मी हाउ। इसीलिए मैं हमेशा पीपल की सैपलिंग अपने साथ रखता था साइकिल पे, क्योंकि जहां पर भी मुझे पीपल नहीं लगाने दिया जाएगा मैं नीम लगा दूंगा। नीम से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, कहते नीम ठीक है, नीम लगा दो, पर पीपल नहीं लगा। फिर धीरे धीरे समझ आया कि लोगों के मन में पीपल के लिए बहुत डर है, लॉट ऑफ फोबिया। इसमें भूत हैं, इसमें चुड़ैले हैं, विचक्राफ्ट है, जादू टोना है, इसमें ये है वो है, जो भी। मेरे जहन में ये चीज होती थी, अरे ये तो पीपल महाराज हैं। पीपल महाराज के नीचे तो बुद्धा ने एनलाइटनमेंट ली, पीपल महाराज के नीचे तो महावीर जी बैठे थे, पीपल महाराज के नीचे तो कृष्ण ने अपने प्राण त्यागे थे, पीपल महाराज के नीचे तो ना जाने कितने साधु संतों ने एनलाइटनमेंट और ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इससे लोग डरते क्यों? फिर जब मैंने ज्यादा स्टडी की, जो भी धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया, तो समझा कि कहीं ना कहीं हम लोग एक कहीं ना कहीं कुछ कर्म कांड के चक्कर में कहीं ना कहीं लोगों ने मन में लोगों के बिठा दिया कि भाई इस पे भूत रहता है ना, तो वास्तु का ये है, इसमें ये दोष है, इसमें वो दोष है। तो फिर और गहरे उतरे और हम जिद पे उड़ गए। फौजी दिमाग था कि भाई अगर कोई चीज मना कर रहा है तो इसको या तो साइंटिफिकली मुझे प्रूव करो इस चीज को, अगर नहीं है तो फिर तो मुझे करना पड़ेगा। सो जब मैंने इस चीज को ध्यान से और अपनी बाकी टीचर से भी पूछा, बाकी एनजीओ के साथ भी हम थोड़ा थोड़ा संपर्क में थे, बहुत लोगों से बात करी, तो ये पाया कि पूरी दुनिया में कोई पीपल का वृक्ष नहीं लगाता। अगर अकस्मात अपने आप कहीं उग गया तो उग गया, उसको भी लोग उखाड़ के फेंक देते थे। और अब जैसे पुणे नासिक रोड का वाइटनिंग चल रही थी उस समय, नासिक फाटा से लेकर नासिक तक पूरा वाइटनिंग चल रही। हमने देखा वहां पे पूरे के पूरे जितने पुराने 200 साल पुराने, 300 साल पुराने, 400 साल पुराने पीपल थे, वो सब काट दिए, सारे काट दिए। फिर मैंने ये चीज उठाई कि नहीं, और एक बड़ी गहरी अंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि उस समय तक आप इतने पौधे लगा चुके हैं, इतने जंगलों में घूम चुके हैं। चाहे मैं छोटा था लेकिन फिर भी साइकिल पे घूमता रहता था सारा, वीकेंड्स पे घूमना, सैटरडे संडे छुट्टी होती थी हमारी, क्योंकि वो 7 डे एडवेंटेज स्कूल में पढ़ता था। वो सैटरडे को जी आपकी छुट्टी होती थी उस समय, और संडे को भी छुट्टी होती थी। फिर 2:30 बजे हम फ्री हो जाते थे, तो मैं साइकिलों पे बहुत घूमा। साइकिल पे मैं मतलब मैंने पूरा महाराष्ट्र साइकिल पे, उस्मानाबाद, बीड़, नांदेड़, लातूर, परभणी, कोपरगांव, शिरडी, बाबलेश्वर, लोनी, ये जितना एरिया है पूरा, यवतमाल, नागपुर, ये सारा एरिया मैंने साइकिल पे घूमा, बहुत छोटी सी उम्र में। और फादर हमेशा इनकरेज करते थे, कहते अरे फौजी का बेटा कुछ नहीं होता। वो कहते अरे ये छोटा सा बच्चा, मेरी मम्मी और थोड़ा सा मम्मी को बहुत डर लगता था मगर, वो कहते कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, फौजी का बेटा है, कोई बात नहीं, जा जा जा। और रात को हम पेड़ों के नीचे सोते थे, क्योंकि भाई उस जमाने में ये तो होता नहीं, कोई ओयो रूम थोड़ा होता था उस समय, तो ये थोड़ी ना कि आप बुकिंग करा लोगे यहाँ आप जाके किसी होटल में ठहर लोगे, इतने पैसे ही नहीं होते थे। तो एक फौजियों का जो टेंट होता है ना, वो पापा ने दिया हुआ था, और फौजियों का एक मग्गा था स्टील का, एक प्लेट थी और कैप थी। और लोग सोचते थे वो छोटा मोटा जैसे कोई फौजी कोई घूम रहा होता है सड़कों पे, तो कोई ज्यादा पंगा भी नहीं देता था, तो खूब काम करते थे। अच्छा, तो ये चीज जहन में आ गई कि भाई पीपल के ऊपर तो काम करना पड़ेगा, इट इज अ कीस्टोन वैरायटी, इसके बिना तो फॉरेस्ट में रौनक ही नहीं होती। आप फॉरेस्ट बना ही नहीं सकते पीपल के बिना। पीपल और बड़, पिलखन और गूलर, ये फाइकस स्पीसीज की हैं, ये इसके बिना तो आप चाहे नवी मुंबई का पीछे संजय गांधी नेशनल पार्क देख लीजिए,
इसमें भी हमने बहुत काम किया। रिलायंस फाउंडेशन ने हमें बुलाया था आज से 10-11 साल पहले, तो पीछे हमने बहुत प्लांटेशन की थी। ये जॉन अब्राहम साहब की बहुत मेहरबानी रही, उन्होंने हमें सपोर्ट किया, उन्होंने बुलाया, उन्होंने होस्ट किया हमें मुंबई में, तो हमें लेकर गए थाने के पीछे जो पूरा एरिया था, RL कॉम्प्लेक्स जो है नवी मुंबई का, उसके पीछे का जितने हिल्स हैं उसमें हमने प्लांटेशन की। सो कहने का मतलब है कि निकल पड़े कि भाई पीपल तो हमारा फ्लैगशिप रहेगा और बाकी स्पीसीज हम साथ साथ लगाएंगे। अब इसमें जो है बहुत सारी चीजें समझ आई। पहली तो फ्रेंड्स एक बात समझ आई कि अवेयरनेस नहीं है। अब मैं कंजर्वेशन और बाकी चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, बिकॉज आई एम 100% श्योर यू पीपल आर वेरी वेरी लर्नेड पीपल। आप लोगों को बहुत गहराई में चीजों का इल्म है, आपको मालूम है कि क्या हो रहा है दुनिया में, इंडिया में क्या हो रहा है, ग्रीस में क्या हो रहा है, टर्की में क्या हो रहा है, कैलिफोर्निया में क्या हो रहा है, कैसे फॉरेस्ट फायर्स हैं, वाइल्ड फायर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, किस तरह से अलास्का में और किस तरह से वेस्टर्न कनाडा में हीट वेव्स आ रही हैं, किस तरह से अंटार्कटिका का टेम्परेचर 18 डिग्रीज पहुंच गया। आई एम श्योर यू मस्ट बी रीडिंग न्यूज़पेपर्स, आई एम श्योर यू मस्ट बी रीडिंग। सो आई जस्ट वांट टू टुडे, जो अभी तक मैंने बात करी वो पर्सनल शेयरिंग, और जो थोड़े मिनट आगे मैं बात करूंगा वो मेरी पर्सनल शेयरिंग। उसके बाद आई वुड लाइक टू टेक क्वेश्चंस। मैंने एक चीज देखी सर कि एजुकेशन की बहुत कम, नेचर एजुकेशन की बहुत कम। हम सोचते हैं कि हमें मालूम, वी थिंक वी नो अबाउट कंजर्वेशन, वी थिंक वी नो अबाउट एनवायरनमेंट, वी थिंक वी अंडरस्टैंड एयर, वाटर एंड सॉइल, बट वी डोंट। बहुत साल काम करने के बाद भी मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ नहीं। तो जितना मैं ज्यादा घूमता था, जितना मैं ज्यादा ट्रैवल करता था, जितने ज्यादा मैंने स्टेट्स टोपोग्राफी देखी, जियोलॉजी देखी, ज्योग्राफी देखी, हर 100 किलोमीटर में सॉइल बदल जाती है, हवा पानी बदल जाता है, हाइड्रोलॉजी बदल जाती है, पानी का जो एलिमेंट्स हैं वो बदल जाते हैं, हार्ड वाटर हो जाता है, खारा पानी हो जाता है, सॉल्टी पानी हो जाता है। सॉइल का भी वही हाल है, कहीं रेड सॉइल है, कहीं ब्लैक सॉइल है, कहीं अलूवियल है, कहीं सैंडी है, कहीं लोमी है, कहीं तो समझा कि इसमें कितनी बड़ी साइंस इन्वॉल्व है। यू शुड नो व्हाट टू प्लांट वेयर एंड हाउ। ऐसा नहीं है कि उठा के कोई भी सैपलिंग कहीं भी जड़। अगर मुंबई क्षेत्र में आप लगा रहे हैं तो मुंबई का एक अपने इंडिजिनस स्पीशीज है, आप ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के वहां लगा रहे, ठीक है। तो ये जो स्टडी थी, ये एक तरीके से फिर मेरी साधना बन गई। दैट दिस बिकेम माय मेडिटेशन, दैट नो, I need to understand. So whatever reading I could do, whatever books I could, I was very poor in maths. So मैं साइंस में जाके और मैं आगे कुछ स्टडीज करना मेरे जहन में नहीं आता था। बस मुझे ये था कि मैं 12th तक साइंस पढ़ लूं। मुझे Is it frozen, Gautam? Should I call him? Yeah, please call him because I think it's frozen. Yeah, I'll just call him. I think probably a power outage looks like at his end. Yeah, Suddenly became dark. I've lost connection. He's in here, is it? No. You logging in again? Excellent. Excellent. Just give me a second. Sure. Okay. You logging in again? Yeah. Okay, great. Till then, Praveen, what can you tell us briefly about the award you're going to get on this Friday? I am going to get a Times Icon Award, whatever that means actually, for vlogging and for storytelling and for world travel. Wow, very nice, very nice.
So it's installed by Times of India Group. Okay, great. I think that's fantastic. I mean, of course, once you receive it, we'll want your photo so we can publicize. सर कहीं भी छाप दो, मैं तो रेडी हूँ, आप छापो, मैं रेडी हूँ सर. People will also be asking you, and I'm not going to put you in a spot, but I am going to put you in a small spot. People will also be asking you for some fellowship. सर अवार्ड विनर को फेलोशिप, हाँ फेलोशिप मुझे हाँ. लगा वो मैं ना फाउंडेशन का वो जो टीआरएफ की बात मतलब वो सोचा था कि पीपल आर गोइंग टू आस्क यू फॉर टीआरएफ डोनेशन. फेलोशिप इज फाइन. Fellowship का donation दिया then then we will get into Fellowship it. is fine. No, but I think I'll just take this opportunity till I think he logs in again. I think in the last few weeks there has been, we had I had attended 3 Rotaract Club installations, and it was amazing to see the energy of the Rotaract clubs. And I think Apurva Dangar is putting in a lot of effort. I think the whole committee is doing. Brinda is also supporting him ably. So I think that is very heartening to see. I think I'm also going to announce that we are going to start the medical lecture series. I think Rahul Goenka, Anand Gupta, Aslam, they've all been putting a lot of effort. So I hope you all come and attend. Come, matlab, on Zoom, of course. This is going to be the once a month lecture series in which we'll be highlighting medical topics. If you all have a medical topic you all want to hear about, please let us know. Now, this is in addition to our real estate lecture series which we organize and which has been a huge success. So we thought of starting a medical series also because that is the need of the hour. People are at home. There are a lot of questions which come up. So we'll be calling experts from time to time. And Manoj Patel, of course, also has been very instrumental in this. He has offered to help in whichever way possible, and he's one of the panelists on the first lecture series. So we are planning to have it on Sunday this time. Do attend in large numbers. So has he logged in? Baba is here. He's here? Yep, he's here. Okay. Yeah, So, people, I see you have grown another people tree. Please, the floor is all yours. पीपल बाबा आप म्यूट पे हैं. म्यूट पे है. No, we're still. We can't hear you as yet. He's on mute. Yeah. Perfect. Okay. Yeah. Okay. So light चली गई थी यहाँ पे तो. Yeah. Okay. अच्छा. So very quickly. So basically, I understood one thing, that education was the key. If you don't educate people, one person goes around planting trees, collects a band of people, about 1,000 people, goes around the whole country planting trees and asking people to do the same. But I realized that how can you scale it up? How can you impact them in the long run? How can you make this viral? Because the governments, they have their own jobs. They have their hands full, or they have their own intentions. They have their own way of thinking. So there was no point in going to government departments and talking to them and talking about policy activism and policy change and things like that. Though I understood we studied everything, the government rules, regulations, क्या है, forestry कैसे काम करती है, forest department कैसे काम करते हैं, horticulture department कैसे काम करते हैं, PWD, and then especially the civic authorities हैं, वो कैसे काम करती हैं. But then, I was coming to a dead end. Now, this was in college time. मैंने बहुत कोशिश की कि, I talked to these government authorities and trying to tell them that, you need the green cover, you need this, you need that, you need biodiversity, how we can do this, how we can do this. And then suddenly, things started changing in my country. And while they were changing, I got a little opportunity to go to Germany. I was in Europe for some time. I cycled through Europe. I went to Finland, Norway at a very, very young age. And मेरे को चीजें clear हो गई. When I came back to India, I realized one thing: I am not going to waste a single minute going to any authority, any government department, anything. Education is the key, and messaging is the key. And I want to make sure, I would like to. मैं भी बच्चा था, मैं भी एक young age में मैंने इन चीजों को पकड़ा था. That I'll go to schools.
आई पिक अप एलिमेंट्री स्कूल्स में बच्चों को उठाओ, बच्चों को ट्रेन करें, बच्चों को समझाएं, वो अपने पेरेंट्स को जाके समझाएं, जैसे सेम थिंग जो मेरे साथ अपना हुआ। सो आई जस्ट टुक माई ओन एग्जाम्पल कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, मेरी साइकोलॉजी पे, मेरी थिंकिंग पे, मेरे एटीट्यूड पे, मेरे इंटेलेक्ट पे कहाँ कहाँ इम्पैक्ट हुआ और किस किसने इम्पैक्ट किया और क्यों इम्पैक्ट हुआ। सो उसी चीज पे हमने काम करना शुरू किया। 2010 में वी डिसाइडेड टू गो एज अ, मतलब 36 इयर्स तो मैंने ऐसे ही काम किया, यू नो, ठीक है। जैसे प्रवीण जी ने भी आपको बताया, मैं पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश लिटरेचर। आई वांटेड टू कंप्लीट माय एजुकेशन बिकॉज वन थिंग आई रियलाइज के भीख मांग के तो आप पेड़ नहीं लगा सकते, तो यू नीड टू हैव योर ओन इनकम, यू नो। आई वांटेड टू बी सेल्फ सस्टेन्ड। आई डिडंट वांट टू डिपेंड ऑन डोनेशंस। मैं अपने आप कमाना चाहता था और वो पूरा पैसा जो है हम अपना ग्रीन कवर के उसमें, क्योंकि एक चीज समझ आई, क्योंकि ग्रीन कवर नहीं है तो बारिश नहीं, ग्रीन कवर नहीं है तो टेम्परेचर, आपका थर्मोस्टेट जो है प्लैनेट का, वो सारा अपसेट होता है। ग्रीन कवर नहीं है तो हमारी वेलनेस नहीं, ग्रीन कवर नहीं है तो हमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। ग्रीन, आप अगर आपको कभी भी वेकेशन का टाइम मिलता है तो आप कहाँ जाना चाहते हैं? आप मैसूर जाना चाहते हैं, आप ऊटी जाना चाहते हैं, आप नीलगिरीज जाना चाहते हैं, आप लोनावला खंडाला जाना चाहते हैं, आप माथेरान जाना चाहते हैं, आप गोवा जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि नेचर के पास आते हैं। मुंबई की जो बड़े बड़े टावर्स हैं, मुंबई की जो कॉन्क्रीट जंगल है, उससे थोड़ा सा दूर हटना चाहते हैं आप जाके। सो अनकॉन्शियसली यू आर गोइंग बैक टू मदर नेचर, अनकॉन्शियसली यू गो बैक टू मदर नेचर। दुनिया से लोग घूमने आते हैं, नॉर्थ ईस्ट घूमने जाते हैं, दे वॉक थ्रू नॉर्थ ईस्ट, साइकिल इतना लोग चलाते हैं नॉर्थ ईस्ट। क्यों? बिकॉज अनकॉन्शियसली हमें शायद बहुत सारी चीजों का पता भी नहीं, बट मदर नेचर, जैसे माँ का एक अपना इंस्टिंक्ट होता है, एक बेटे का इंस्टिंक्ट होता है, बेटी का इंस्टिंक्ट होता है कि वो बार बार अपनी माँ के पास जाता है, तो इसी तरह से नेचर, यू नो, जितना हम दूर हटते जा रहे हैं, हमारी वेलनेस, हमारी हेल्थ, हमारा ब्लड प्रेशर, हमारी डायबिटीज, हमारा जो भी लाइफस्टाइल डिजीज, वो आती जा रही हैं। एक बड़ा मजेदार बात किस्सा है कि जब कोरोना हुआ, और ये तो हमारे जो पहले स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब थे वो नॉर्थ ईस्ट के, उन्होंने ट्विटर पे इस चीज को भी डाला है। जितने भी लोग जंगलों में रहते, चाहे अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, आपका नॉर्थ ईस्ट ले लीजिए, आपका नीलगिरीज ले लीजिए, वेस्टर्न घाट्स ले लीजिए, जो जंगल के अंदर रहते, ठीक है। आपके जो ट्राइबल क्षेत्र हैं, आपका मध्य प्रदेश के ट्राइबल क्षेत्र हैं, फिर आप छत्तीसगढ़ ले लीजिए, आपका झारखंड ले लीजिए, हिमाचल और उत्तराखंड का नॉर्दर्न पार्ट ले लीजिए जहाँ घने जंगल है, कश्मीर ले लीजिए जहाँ बिल्कुल नॉर्दर्न पार्ट है जहाँ पर घने जंगल। कोरोना नहीं, कोरोना नहीं। सो इट वॉज अर्बन फिनोमेनन विच लेटर जब माइग्रेंट्स यहाँ से गए तो दे कैरिड इट टू बिहार, दे कैरिड इट टू द विलेजेस, दे कैरिड इट टू छोटे क्षेत्रों में चले गए। सो वन थिंग इज क्लियर, अब जैसे मैं भी बहुत ट्रैवल करता हूँ स्पेशली इन एरियाज, जिन एरियाज में, तो आई हैव नेवर सीन समबडी कंप्लेनिंग जंगल के अंदर बैठ के कि मुझे डायबिटीज है, या मुझे ब्लड प्रेशर है, या मुझे एंजाइटी है, या मुझे डिप्रेशन है। हाँ, मलेरिया हो जाएगा उससे, वो बात अलग है, और शायद मलेरिया से मर भी जाए, वो भी अलग है, जबकि उनके पास देसी दवाइयां होती हैं, देसी तेल होते हैं, वो मल के सो जाते हैं, उनको मलेरिया मच्छर भी नहीं काटते। लेकिन मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ सर कि जो प्रकृति की गोद में रह रहा है वो तो बीमार भी नहीं, उसको मैदानता नहीं चाहिए, उसको अपोलो नहीं चाहिए, उसको 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 फोर्टिस नहीं चाहिए, उसको बड़े बड़े हॉस्पिटल्स नहीं चाहिए। सो वेयर आर वी स्पेंडिंग, व्हाट आर वी स्पेंडिंग ऑन? सो अभी जैसे जापान में जो है ये चीज आ गई है कि इफ वी इनॉग्रेट अ हॉस्पिटल, सो इट्स कंसिडर्ड टू बी अ स्लैप ऑन द फेस ऑफ द गवर्नमेंट, कि हम अपने सिटीजन्स की, हम इतनी भी हेल्थ, उनकी बेसिक हेल्थ, प्रिवेंटिव मेडिसिन जिसको बोलते हैं, हम वो भी नहीं कर पाए कि हमें हॉस्पिटल की जरूरत पड़े। भूटान में इट इज कंसिडर्ड टू बी अ, आप भूटान में जाएं, भूटान में आप देखें तो वैसे तो मुश्किल से कुछ हॉस्पिटल्स हैं वहां, आई एम श्योर जिन्होंने ट्रैवल किया होगा आपने देखा होगा। सो एक चीज देखी गई
कि जिस देश में भी 50% से ज्यादा ग्रीन कवर, अब इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज आई ट्रेवल्ड थ्रू यूरोप and I studied the entire pattern of this thing. And I have been interacting with a lot of people who are working in afforestation, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स फॉरेस्ट सर्विसेज हो या बियॉन्ड ट्रीज नेटवर्क है या जितने भी आपके यूएन रिलेटेड जितनी एजेंसीज है, एक चीज पक्की है, जिन क्षेत्रों में 50% से ज्यादा ट्री कवर है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, जिस क्षेत्र में भी 50% से ज्यादा ट्री कवर है, जिन शहरों में, जिस गांव के क्षेत्र में, जिस ब्लॉक में, जिस तहसील में, वहां पर बीमारी बहुत 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 कम। एंड भूटान में नाउ इट इज 72%, जापान इज 67%, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जितने भी हैं, दे आर ऑल अबव 60%, जर्मनी एंड फ्रांस आर रफली 50% ऑर्डर। आप हेल्थ को डायरेक्टली, मैं इसको बोलता हूं कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री नहीं, ये हेल्थ मिनिस्ट्री होनी चाहिए। इट इज जस्ट अ पर्सपेक्टिव, इट शुड बी द अंडर कमिंग अंडर हेल्थ मिनिस्ट्री। आपका जितने भी फॉरेस्ट कवर है, जितना भी आपका ग्रीन कवर है, जितनी भी आपकी ये चीजें, दे प्रोवाइड मेंटल वेलनेस, दे प्रोवाइड फिजिकल वेलनेस। अब हमारे पास बहुत लोग आते हैं कि हम डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, सब कुछ, तो हम देखते हैं कि हम सबसे पहले उनको क्या बोलते हैं, आप मसूरी चले जाइए, आप शिमला चले जाइए, आप किसी हिल स्टेशन पे जाके चलते। आप बेसिकली क्या कह रहे हैं, एक कम टेम्परेचर की जगह पे जाइए, दूसरा आप कहते हैं हरियाली में जाइए। तो ये जो हरियाली शब्द है ना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, हम इसको नजरअंदाज करते हैं। अब हम क्या करें, अब तो हम अर्बन एरियाज में रह रहे हैं, शहरी जीवन जो है, 40% पॉपुलेशन इंडिया की जो है वो मेट्रो सिटीज में है, ए ग्रेड सिटीज में है, बी ग्रेड में, सी ग्रेड में, जो भी छोटे मोटे जो भी शहर है, 40% पॉपुलेशन आ चुकी है। सो माय थिंग इज, नॉट एवरीबडी कैन गो आउट देयर एंड प्लांट अ ट्री, नॉट एवरीबडी कैन गो एंड डू समथिंग लाइक एफॉरेस्टेशन वर्क। ठीक है, वो हमारी कहानी थी, वो हमारी जुबानी थी, वो हमें, वो दैट वाज माय डेस्टिनी। जैसे हमारे गुरुजी कहते थे कि यू डोंट प्लांट अ फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट चूजेस यू, यू डोंट गो एंड प्लांट अ ट्री, द ट्री चूजेस यू टू प्लांट इटसेल्फ। हम वृक्षों को नहीं चुनते, हम वृक्षों को नहीं लगाते, वृक्ष हमें चुनते हैं, चाहे वो रोटरी क्लब हो, चाहे वो कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो ABC जो भी नाम हो उसका, इंसान का। ये आपकी किस्मत अच्छी है कि प्रकृति ने आपको चुना उस दिन के लिए, देश काल पात्र में, कि आप जाके वहां पर खड्डा खोद के एक छोटा सा सैपलिंग लगाएं। अब ये आपके कर्मों पे डिपेंड करता है कि आप उसको जिंदा रखेंगे या नहीं। बिकॉज प्लांटिंग अ सैपलिंग इज नॉट अ बिग डील, वो तो कोई बच्चा भी कर सकता है, वो तो नेता भी कर सकता है। देखते हैं ना आप, नेता लोग करते हैं, करोड़ों पेड़ लगा देते हैं सैपलिंग, फिर उनको काउंटिंग करने जाइए 3 महीने बाद, a few hundred are there, है ना। तो उसकी जब तक आप 3 साल उसकी सेवा नहीं कर सकते, 3 साल उसमें खाद पानी नहीं डाल सकते, 3 साल उसको गाय भैंस बकरी से बचा नहीं सकते, 3 साल के लिए उसकी प्रूनिंग करना, उसकी सिक्योरिटी, उसको सेव करके रखना, जब तक वो 20 फुट को क्रॉस कर जाए, 20 फीट जब ग्राउंड क्लियरेंस प्लांट की आती है, तब जाके वो गाय भैंस बकरी के नेक की, अगर बकरी भी ऐसे खड़े हो जाए तो वो उसकी कैनोपी को खा नहीं सकती। जबकि जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो गाय भैंस बकरी के ही काम आता है। आप उसकी जो प्रूनिंग करके आप गाय भैंस बकरी को खिला सकते हैं, उसकी शेड में गाय भैंस बकरी बैठ सकती है, उसके शेड में इंसान बैठ सकते हैं। लेकिन जो क्रिटिकल चीज है वो ये चीज समझनी है कि 3 साल के लिए आपको वृक्षों को बचाना है। अगर आप एफॉरेस्टेशन में जाते हैं, एफॉरेस्टेशन इज अ बिग वर्ड, छोड़िए, आप ट्री क्लस्टर्स में जाते हैं या आप कोई भी पौधा लगाते हैं, ग्रो समथिंग ग्रीन। इट इज नॉट, ये नहीं है कि आपको बड़ लगाना है, पीपल लगाना है, आम लगाना है, अमरूद लगाना है, नीम लगाना है, कचनार लगाना है, तभी आप कोई महान काम करेंगे। ना ना ना, ऐसा नहीं है। तो एक चीज हमने जीवन में समझा, आप छोटे से छोटा कृत कीजिए,
उसका फल वैसा ही मिलेगा। आप चाहे धनिया लगाइए, पुदीना लगाइए, टमाटर लगाइए, आप हरी मिर्च लगाइए, आप अपने घर में ग्रो समथिंग, जस्ट ग्रो सम ग्रीन्स, प्लीज ग्रो सम ग्रीन्स। आप, आपके पास टेरेस है, आपके पास बैल्कनी है, आपके पास लिफ्ट के पास स्पेस होगी, आपके पास कॉरिडोर है, आपके पास बैल्कनीज हैं, आपके पास एक स्टडी है, उसकी विंडो सिल है, मनी प्लांट लगाइए, आप बेशक एरेका पाम लगाइए, आप चाहे कोई इंडोर प्लांट लगाइए, कोई आउटडोर प्लांट लगाइए, आप बस प्लीज लगाइए। सो इफ एवरी सिटीजन ऑफ द प्लैनेट, I will not talk about just city and state and country. I don't believe in this. I'm not a nationalist in those terms, because I have realized one thing: God made only one planet. He did not make Afghanistan, Pakistan, India, Bhutan, America, this, Nigeria, Morocco. He didn't make that. He has no business doing that. He made one planet. We need to understand. We are global citizens. जो हवा अमेज़न से निकलती है वो हमें भी मिलती है। Do you know? 20% of the green cover जो होता है आपका, ठीक है, वो आपका जो टागिया फॉरेस्ट है, 6000 माइल्स लंबे रशिया के फॉरेस्ट हैं, और आपका जो अमेज़न, they make up 1/3 of the tree cover of the world. And it is because of these two lungs that you and me are talking today on this Zoom meeting. अगर आप इन दो लंग्स को निकाल दीजिए, अमेज़न एंड टागिया फॉरेस्ट ऑफ रशिया, साइबेरियन फॉरेस्ट, जो आप ये दो इनको निकाल दीजिए, you and me are dead. Man, you are dead. हम इस चीज को समझते नहीं। यूरोप पूरा जो है इस वक्त धू पे जल रहा है, बिकॉज जमीन का टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर सर क्यों बढ़ता है? आपको गर्मी क्यों लगती है जब आप गर्म बाहर निकलते हैं? क्योंकि आपके पास छतरी नहीं है, आपके पास कैप नहीं है, है ना? अगर आप छतरी के नीचे हैं तो छतरी क्या है? हरियाली है। तो ये जो पेड़ है ना, ये आपकी धरती की छतरी है। ग्लोबल वार्मिंग कोई बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, दुनिया भर की कॉन्फ्रेंसेस, अरे इसमें कॉन्फ्रेंस क्या कर लेगी भाई? द प्रॉब्लम इज द वर्ल्ड इज सो बिजी रिएक्टिंग, रिएक्शन हो रहा है, एक्शन कुछ नहीं हो रहा। एंड 44 इयर्स काम करने के बाद ग्राउंड पे मैं आपको आज एक बात बताऊं, हम रिएक्शन पे इतना समय गुजारते हैं, बैनर्स लगाते हैं, कैंपेन्स कराते हैं, हैशटैग्स लगाते हैं, सोशल मीडिया पे जाते हैं, गवर्नमेंट के साथ बातें करते हैं, गवर्नमेंट के साथ बात करती है, नेशन के साथ बात करता है, हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं, विंड एनर्जी की बात करते हैं। अनपढ़ता, दिस इज इलिटरेसी। You basically have your green cover intact. Everything will be taken care of. You have your green cover. परमात्मा ने आपको हाइडल प्रोजेक्ट्स नहीं लगा के दिए, परमात्मा ने आपको डैम्स बना के नहीं दी। परमात्मा, यू जस्ट गो बैक टू हिस्ट्री एंड जस्ट सी हाउ द वर्ल्ड वाज। आप सिर्फ उस मैपिंग को देखिए, परमात्मा ने कैसे बनाया था आपको, नेचर ने आपको कैसे बनाया था। नेचर ने आपको 423 नदियां दी हैं जनाब पूरे हिंदुस्तान में, 423 रिवर्स। हाउ मेनी हैव वाटर इन देम? 140। क्यों? क्योंकि नदी में पानी कहां से आता है? आइदर ग्लेशियर मेल्ट से आता है, स्नो मेल्टिंग से आता है, या फिर कहां से आएगा? जंगलों से आएगा। जंगल के अंदर इट इज लाइक अ स्पॉन्ज। जो जंगल होता है, जो वृक्ष होते हैं, वो पानी का चुंबक होते हैं। दे आर द मैग्नेट्स ऑफ वाटर। दे कीप द वाटर विद देम एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, इट रिलीजेस द वाटर इनटू रिवुलेट्स। रिवुलेट्स पे छोटी छोटी नदियां, पहाड़ी नाले को होते। आज उत्तराखंड में इतने लैंडस्लाइड क्यों हो रहे? बिकॉज आई वर्क इन उत्तराखंड अ लॉट, एंड जब ये लॉकडाउन हुआ था तो मैं 50 डेज के लिए मैं उत्तराखंड में ही था। आई वॉज वॉकिंग अराउंड द एंटायर उत्तराखंड। सर, इट इज ओनली बिकॉज कि आपने सड़कें बना दी, लेकिन पहाड़ से आपने पूरा ट्री कवर निकाल दिया, आपने पूरा ग्रीन कवर निकाल दिया। फिर कहते हैं जी लैंडस्लाइड हो गई। अरे लैंडस्लाइड तो होना ही है। क्लाउड बर्स्ट जो है और बारिश है, वो तो बहुत नेचुरल फिनोमेना है। नेचुरल फिनोमेना है। जहां पेड़ होंगे वहां बारिश होगी, जहां जंगल होंगे वहां बारिश होगी, जहां पहाड़ होंगे वहां बारिश होगी। अब वेस्टर्न घाट्स का एग्जांपल दे दीजिए, है ना? लेकिन अगर आप वेस्टर्न घाट्स का पूरा निकाल देंगे पेड़, क्यों जी? क्योंकि आपने हाईवे बनाना है, 4 धाम यात्रा के लिए आपने वो बनानी थी, आपने सड़कें बनानी थी। और मजेदार तो बात ये है सर, हम जिस चीज को डेवलपमेंट कहते हैं,
चलिए आप हम अपने धर्म की ही बात ले लेते हैं, अब हिंदू संस्कृति की बात ले लेते हैं कि हम एक कहते हैं कि केदारनाथ जी के पास जाना है, बद्रीनाथ जी के पास जाना है, वो शिवलिंग वहां है, वहां जाना है। हम तो नानी के साथ पैदल पैदल जाते थे, हरिद्वार ऋषिकेश से हम पैदल जाते थे, बद्रीनाथ केदारनाथ हमें 6 दिन 7 दिन लगते थे, हम पैदल पैदल जाते, तो लगता था कि यात्रा पे जा रहे हैं। आज आप एक एसयूवी में फॉर्च्यूनर में बैठते हैं, पंजाबी गाने लगाते हैं, जैज म्यूजिक लगाते हैं, कोक और बियर हाथ में रखते हैं, ये आपकी यात्रा है। और आप डेवलपमेंट क्या कर रहे हैं सर, सुपर हाईवेज बना रहे हैं, सारे आपके पहाड़ नंगे, और ना जाने कितने हजारों आदमी लोग मर जाते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे डेवलपमेंट, विच किल्स ह्यूमन लाइफ, विच किल्स ह्यूमन पीपल। आप होमो सेपियंस के लिए हम कर भी क्या रहे, डू यू नो, हमारी नानी ने, हमारी मिसेस विलियम्स ने, जो हमारी टीचर है, एक बड़ी गजब की बात बोली। और मैंने 2017 में टेड टॉक, जब मेरा पहला टेड टॉक था, मैंने ये चीज स्टेज पे खड़े होकर मैंने कोट की थी, एंड आई एम, और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं उस चीज को दोबारा रिप्ले करता हूँ। उस समय मैंने ये चीज, मतलब मैंने बोला था ऑडियंस को कि माय टीचर यूज्ड टू टेल मी 1976 दैट बिटवीन 2020 एंड 2030, ये ध्यान से सुनिएगा, 2020 एंड 2030 यू विल लूज 70% ऑफ योर पॉपुलेशन। तो मैं कहता, मैम ये क्या बात बनी, व्हाई विल वी लूज पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, मेडिकल साइंस एडवांस हो रही है, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, ह्यूमन लाइफ स्पैन बढ़ रहा है, सब कुछ तो हो रहा है, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट 70% पॉपुलेशन पे तो कहते नो, बिकॉज यू आर चॉपिंग डाउन द फॉरेस्ट, 70% पॉपुलेशन विल हैव टू पे द प्राइस। एंड लुक व्हाट हैपेंड, वुहान जो है प्रोविंस के बाहर का जंगल कटा, ठीक है, वो पूरा जंगल था वो कटा, फॉरेस्ट कटा, जैसे ही वहां लंबरिंग हुई फॉरेस्ट कटा, वहां से जो बैट्स की कॉलोनी थी, जो उनका परमानेंट हैबिटेट था, वो उड़ के वुहान प्रोविंस के अंदर आया, शहरों में आया, वहां की मंडियों में आया, वहां ड्रॉपिंग्स हुई, पिग्स ने उनको खाया। पिग्स जो हैं आप जानते हैं चाइना में लोग खाते हैं उनको, वो आपके ह्यूमन बॉडी में प्रवेश कर गया। तो हुआ क्या, अल्टीमेटली हैबिटेट चेंज हुआ। वायरस तो आराम से रह रहा था आपका, चाहे स्वाइन फ्लू हो, इबोला हो, सार्स हो, आपका स्वाइन फ्लू हो, बर्ड फ्लू हो, ये है क्या सर, ये सिर्फ ये है कि हम उनके हैबिटेट्स खराब कर रहे हैं, हम बर्ड्स का हैबिटेट खराब कर रहे हैं, हम इंसेक्ट्स का हैबिटेट खराब कर रहे हैं, हम एनिमल्स का हैबिटेट खराब कर रहे हैं, हम 12 मिलियन स्पीसीज जो हैं हमारी, उनके हैबिटेट्स खराब कर रहे हैं, उनके हैबिटेट्स खराब करके हम अपना हैबिटेट बनाए। और अपना हैबिटेट जब बनाओगे तो फिर देख लो, फिर उसका रिजल्ट देख लीजिए पूरे देश में और पूरे दुनिया में क्या हो रहा है, आप देखें। अब वो बात अलग है, एंटरटेनमेंट के लिए आप कुछ भी कहते हो, वो तो लेबोरेटरी पे बना था, वो जी चाइना का ये था, यूएस ने ऐसे कर दिया, वो ठीक है सर, ये पॉलिटिकल एंटरटेनमेंट है, हमें भी मालूम है टीआरपीस वगैरह कैसे चलती है, ये ठीक है, शाम के वक्त एक ड्रिंक लेके लोग बैठ जाते हैं और एंटरटेनमेंट हो रही। लेट्स कम डाउन टू ब्रास टैक्स, लेट्स कम डाउन टू द बॉटम लाइन। वी आर meddling with nature, we are fingering nature, we are molesting nature, we just don't know where we are going, and we are doing it at the cost of giving up on the on जो होमोसेपियन रेस है। इवन स्टीवन हॉकिंग के, आप जो अभी उनकी मृत्यु हुई, स्टीवन हॉकिंग के जर्नल्स निकले, आप यूएस में उसको गूगल करके देखिएगा, उनके जर्नल्स में क्या लिखा हुआ है, उन्होंने भी लिखा है होमोसेपियंस विल नॉट सर्वाइव after 2050 if they do not respect their forests and trees. And US Forest Services के लिए, क्योंकि हम काम करते हैं तो हमें मालूम है उनकी कोलैबोरेशन, वो भी इतने सारे स्टडीज, जर्मनी में अभी इतनी स्टडीज चल रही, बिकॉज मैं इस चीज से कंक्लूड करूंगा, फिर उसके बाद आई टेक क्वेश्चंस फ्रॉम यू। सर हम ना वनस्पति चेतना को समझ नहीं पाए, वी आर टू बिजी विद मनुष्य चेतना। एक स्पीसीज है सर होमोसेपियन, सिर्फ एक स्पीसीज है। इतना जंगलों में काम करने के बाद 44 इयर्स के बाद मैं एक चीज समझा कि जिस दिन मूड खराब हुआ ना नेचर का, डू यू नो वी लूज एवरी 6 hours वी आर लूजिंग वन स्पीसीज फ्रॉम द फेस ऑफ द प्लैनेट। जिस दिन मूड खराब हुआ ना इनका, मूड खराब होने का क्या मतलब है,
We as Homo sapiens prove to the celestial intelligence, cosmic intelligence which runs the entire Milky Way, the universe, the solar system, the Jupiters and the moons and the gravitational pull and the earth and the oceans and the tides and everything. जिस दिन उसकी एल्गोरिदम खराब हुई तो सबसे पहले होमो सेपियन रेस यहां से कैरम की गीटी की तरह हटा दी जाए। और हम बैठे हैं जी ऑडी और जी को ये है और ये पॉलिटिकल पार्टी में आना है, अफगानिस्तान में तालिबान में आना है, उसने ये आना है, उसने। वी डोंट इवन नो वेयर वी आर हेडिंग सर। यू आर हेडिंग टुवर्ड्स एक्सटिंक्शन एंड वी आर सो बिजी बाइंग प्रॉपर्टीज, apartments, penthouses, air conditioners and everything, and we don't even know what we are doing. जंगलों में जाके रहिए तो आपको समझ आएगा शहरों की कहानी क्या है। कभी किसी पहाड़ की चोटी पे बैठिए तो आपको नीचे देखेगा तो आपको समझ आएगा नीचे हो क्या रहा है। We live in our own cages, but ठीक है, that is human psychology. बहुत अच्छा लगता है कि आहा आराम से एसी चला लिया, टेम्परेचर ठीक हो गया, पेड़ों की क्या जरूरत है ना, हम कंफर्टेबल है ना, हम अच्छे हैं ना, हमारी फैमिली ठीक है ना, हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है ना, हमारे बैंक में पैसे है ना, हमारी एफडी है ना, हमारे शेयर प्राइसेस ठीक है ना। भाड़ में जाए दुनिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप सब लोग ऐसा सोचते हैं या दुनिया ऐसा सोचती है, आई एम जस्ट सेइंग, क्योंकि व्हेन वी स्टार्टेड ऑन दिस कैंपेन ऑफ एजुकेटिंग पीपल, हम उसको हरियाली होम्स बोलते थे, ठीक है, एक हरियाली क्रांति करके हम लोगों ने कैंपेन 17 साल पहले शुरू किया था। And we went out and we started telling people in form of stories. बच्चों के पास गए, स्कूल्स में गए, कॉलेजेस में गए, कैंपसेस में गए, हॉस्पिटल्स में गए, पेशेंट से हमने बात करी। जो अस्थमा का पेशेंट था उसको जाके बोला, मैं कहा सर क्यों होता है अस्थमा, आपको क्यों होता है? उसको पूरी एनाटमी समझाई, फिजियोलॉजी समझाई। आधी चीजें तो आपके स्ट्रेस और आपकी साइकोलॉजी के कारण होता है अस्थमा, है ना। लेकिन जैसे जैसे वो गार्डनिंग में आया, जैसे जैसे आप देखो कई ऐसी डिजीजेस है, अगर आप गार्डनिंग एज अ हॉबी लेते हैं, नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट, कि अगर आप गार्डनिंग हॉबी लेते हैं, इफ यू डेवलप ग्रीन फिंगर्स एंड यू स्पेंड टाइम विद प्लांट्स, वनस्पति चेतना के साथ कुछ वक्त गुजारिए। अभी जैसे सर कह रहे थे, वो गुजरात में जो सर हैं कि कुछ वक्त गुजारो गुजरात में, है ना, तो ये कुछ वक्त गुजारिए हरियाली के साथ। आप जितना इसके, ये नाभि है आप, ये आपकी नरिशमेंट है, इसी से सब कुछ आना है। और हम कर क्या रहे हैं, इतना केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं। केमिकल फर्टिलाइजर क्या होता है, उसको हम केमिकल फर्टिलाइजर बोल देते हैं, हम जैसे लोग उसको पॉइजन बोलते हैं। वो कंप्लीट टॉक्सिन है। आप उसको पहले धरती में डालते हैं, फिर वो आपके नीचे अंडरग्राउंड वाटर में जाता है, फिर आप उसको पानी पीते हैं, फिर वो आपके शरीर में आता है, आपके वेजिटेबल्स में आता है, आपके फ्रूट्स में आता है, आपकी पेस्टिसाइड में है, आपकी वीडीसाइड में है। ये इतना बड़ा व्यापार चल रहा है। हाउ कैन यू डू बिजनेस विद डेथ? हाउ कैन यू डू बिजनेस विद पॉइजन? हाउ कैन यू रन द इकोनॉमी विद पॉइजन? हाउ कैन यू इवन डेयर टू से कि हमारा जीडीपी बढ़ गया क्योंकि हमने केमिकल फर्टिलाइजर यूज किया? इट्स सच अ ट्रेजेडी। हम पॉइजन डाल डाल के अपनी पूरी जनरेशन, वी आर अमंग द फिजिकली मोस्ट वीकेस्ट जनरेशन। वीकेस्ट क्यों? क्योंकि हमारा डीएनए वीक होता जा रहा है, इसीलिए वायरस हावी होगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। हम लोगों ने वॉक करनी बंद कर, हम लोगों ने फिजिकल वर्क कम कर दिया, हम लोग टेक्नोलॉजी और मशीन्स के ऊपर निर्भर हो गए। तो हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी कम होने के कारण इतना कुछ। और क्यों? क्योंकि ये सब इसलिए क्योंकि हमने अपना, हम कृषि प्रधान देश थे, हम तो गुरु देश थे, हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी, हमारी फार्मिंग इकोनॉमी थी। हमने बच्चों को तो जाने ही नहीं दिया एग्रीकल्चर, हमने तो बल्कि वो जमीनें बेच बेच के उसको रियल एस्टेट पे कन्वर्ट करके कंक्रीट बना दिया, हाईवेज बना दिया। वी आर वेरी हैप्पी। हमने शहर बसा दिया, हमने नए टाउनशिप्स बसा दिया, हमने नए एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स बना दिए, हमने पोर्ट्स बना दिए, हमने, ठीक है, इट्स गुड, ऐसा नहीं है कि आप मत, ठीक है। लेकिन एक सिंपल फॉर्मूला है सर, और वो ये है, एनी रिलेशनशिप thrives on 50-50 partnership. If you don't give 50% space to greenery, whether it is your house, whether it is your corporate office,
whether it is your park or your stadium or your college or your university campus or your industrial or your factory complex or the city or your civic areas or your state or your country or your planet. अगर आप 50% से कहते हैं ना, बच्चा 50% अगर नहीं लेता पास नहीं होता, कहते हैं ना एग्जाम में पास नहीं होता, तो हमारी नानी यही कहा करती कि बेटा अगर पास होना है ना, जिंदगी की दौड़ में अगर पास होना है और होमोसेपियन रेस को बरकरार रखना है, स्पीसीज की रेस में पास होना है, तो 50% तो ग्रीनरी आपको चाहिए. एंड टुडे व्हाट डू वी हैव इन इंडिया? वी आर एट 8.4%. सैटेलाइट पिक्चर्स अगर आप प्रॉपर्ली इसको गूगल मैपिंग के साथ देखें, गवर्नमेंट से 20%, 22%, 23%, 24%. ठीक है, उनको कहने दीजिए. I would also not like to comment on that. But if you really see the satellite pictures, आपका जो एक्चुअल ग्रीन कवर, रियल ग्रीन कवर जो परमानेंट ग्रीन कवर जो है वो 8.4% है. ठीक है, मोटा मोटा तौर पे आप 10% समझिए उसको. एंड होना कितना चाहिए सर? 50%. 50%. So, and how much time do we have? You have just 5 to 6 years. If you don't do that, जो टर्की में हो रहा है, ग्रीस में हो रहा है, वो इंडिया में भी. जो अलास्का में हुआ है, जो हीट वेव्स आई हैं, हीट वेव्स तो खैर इंडिया में आनी शुरू हो ही गई. आप दिल्ली शहर ले लीजिए, 2012 के बाद यहाँ बारिश ठीक नहीं हुई. बहुत सालों बाद यहाँ पर पहली बार 4 दिन अच्छी बारिश हुई. जुलाई में 4.5 दिन हुई और 4 दिन हुई अच्छी बारिश हमारी अगस्त में. पहली बार बारिश हुई है. तो अभी अगर आप दिल्ली आएंगे तो आपको थोड़ा हरा हरा लगेगा, हरियाली लगेगी. Anyway, so Give Me Trees came to be Give Me Trees Trust in 2011. हम लोगों ने इसको रजिस्टर करवाया. जॉन अब्राहम जी ने हमें बहुत सपोर्ट किया था एंड मिस्टर माइक पांडे की ब्लेसिंग्स थी और भी बहुत अन्य बहुत प्यारे प्यारे लोग जो इस मुहिम से जुड़े. सो हमने 18 स्टेट्स में तो बहुत एक्टिवली काम किया. वी हैव प्लांटेड इन ईच एंड एवरी स्टेट इन इंडिया एक्सेप्ट केरला. हम केरला नहीं गए. और हमने 74 लाख नीम ट्रीज हमारी स्टैंडिंग है अभी. वी प्लांटेड अ लॉट मोर सैपलिंग्स, लेकिन हम सैपलिंग का काउंट जो होता है तब तक नहीं करते. हम 3 ईयर्स से पहले काउंट नहीं करते. हम ये नहीं कहते कि हमने ये लगा दिया. नहीं, लगाने से कुछ नहीं होता, वो तो हम काउंट ही नहीं करते. हम वो काउंट करते हैं जो 3 साल के बाद जो सरवाइव किया और जिसने 20 फीट टू 30 फीट को क्रॉस किया. सो जो पेड़ 20 से 30 फीट क्रॉस करता है सिर्फ उसको काउंट करना चाहिए, उसके बिना आपको काउंट नहीं करना चाहिए. वो तो सीडलिंग सैपलिंग की काउंट थोड़ी ना होती है, ट्री की काउंटिंग होती है. तो जो यंग ट्रीज होते हैं वो होते हैं जो आपका कम से कम 20 फीट को क्रॉस करे और उसकी छोटा सा क्राउन बनना शुरू हो जाए, कैनोपी बननी शुरू हो जाए, उसको हम पेड़ बोलते हैं. पेड़ वो होता है जिसपे स्क्विरल्स आते हैं, जिसपे पक्षी वास करते हैं, जिसमें नेस्टिंग होती है ना, जिसमें इंसेक्ट पॉपुलेशन आती है. सो हम पीपल पे, अब पीपल से बात शुरू हुई थी, पीपल पे अंत करेंगे. तो पीपल हमने 1,27,00,000 लगाए. पीपल हमने 202 जिलों में, हमने 18 प्रदेशों के अंदर जो मुख्यतः हमने लगाए, जो क्लस्टर्स लगाए, जो एवेन्यू ट्रीज लगाए, जो हमने नेशनल हाईवेज पे लगाए, स्टेट हाईवेज पे लगाए. एंड हमने सबसे पहले उसकी मेंटेनेंस की प्लानिंग. फौजी एक एनवायरनमेंट में रहने का होता है कि वो ना प्लानिंग बहुत करते. ट्रूप मूवमेंट कैसे होगी, प्लाटून बनेगी, फिर जी यूनिट बनेगी, फिर उसके बाद ब्रिगेड होगा, डिव होगा, डिव के बाद कोर होगा, कोर पे स्ट्राइक कोर होगी, कैसे होती. तो हम अपने पापा की बातें सुनते थे, फादर की, और बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स के साथ उठते बैठते. तो एक छोटा सा जैसे नहीं, ये तो हम उसको मेंटेनेंस प्लाटून बोलते थे कि भाई 15 लोगों को, 15 बच्चों की एक वो होगी या 15 लेडीज की, या कोई किटी पार्टी वाले लोग थे. और बहुत पहले इलाहाबाद में मैं रोट्रैक क्लब में भी रहा हूँ. आई वॉज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द इनॉगरल दिस थिंग वे बैक, आई थिंक 1983-84 की बात है. इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हम पढ़ा करते थे उस. तो उस समय भी हमने इलाहाबाद में बेली रोड है, फापामऊ है, कलियरगंज है, ईगल एरिया है, जितना कैंटोनमेंट एरियाज हैं, हमने 54 कैंटोनमेंट एरियाज हैं मेजर इंडिया में. उनमें से हमने 43 में प्लांटेशन की है पूरे. एंड आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि आर्मी थोड़ा सा नॉर्दर्न कमांड में हमने बहुत सारी प्लांटेशन की.
अलॉन्ग द LOC हमने बहुत प्लांटेशंस की, हमने जम्मू डिवीजन में बहुत प्लांटेशंस की, हिमाचल उत्तराखंड में तो बहुत काम किया हमने, दिल्ली NCR में हम पिछले 4 साल से टिके हुए। Last 4 years I'm camping in Delhi NCR and we are making sure, because maximum जो डैमेज हुआ एयर को आप देखते ही हैं, स्मॉग आता है, हर दिवाली में स्मॉग आता है। वी आर ट्राइंग टू just organize people and educating people. We are just trying to create. I'm very hopeful. Having said everything, मैं जितनी भी मैंने बातें करी, आप ये मत सोचिए कि मैं बहुत नेगेटिव हूँ इन चीज़ों को लेकर, लेकिन मैं बहुत होपफुल हूँ कि आने वाले वक्त में जो हमारी नई जनरेशन, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बड़े बुजुर्गों से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो लोग सुनते हैं बेचारे, उनके पास हिम्मत नहीं है काम करने, ना वो फिजिकली फिट हैं काम करने के लिए। वो ठीक है, पैसा दे सकते हैं, थोड़ी फंडिंग दे सकते हैं, थोड़ी बात कर सकते हैं, बट दे कांट डू इट, बिकॉज बिजनेस छोड़ के कौन जाएगा काम करने के लिए, यू नो। तो जो यंगस्टर्स हैं उनमें मेरे को बहुत उम्मीद नजर आती है, जो यंग ट्रैवलर्स हैं, सोलो ट्रैवलर्स हैं, जो जिनमें जज्बा है, जुनून है, जो हमारे छोटे छोटे यंग पीपल, दे आर स्टार्टअप्स में काम कर रहे हैं, जो हमारे स्पेशली मैं 8th 9th 10th के बच्चों से बहुत इंटरेक्ट करता हूँ, एंड 3rd 4th 5th 6th में अगर मेरे को कहीं मौका मिल जाता है किसी स्कूल में बात करने का, दैट इज माई प्रायोरिटी नंबर 1। वाई? बिकॉज आई वॉज अफेक्टेड व्हेन आई वॉज इन द 4th grade and 5th grade, so मेरे लिए वो एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट। So we are trying to tell the children that this is what the future is, this is what your past was, and this is what you can do right now. And then उनको एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ थ्योरी तो उनको टीचर भी पढ़ा देती है, वो तो NCERT बुक्स में भी लिखा है, वो तो स्टेट एजुकेशन की बुक्स में भी लिखा है। हम उनको प्रैक्टिकल चीज करके दिखाते हैं, हैंड्स ऑन करा के दिखाते हैं, उनको अपने फॉरेस्ट साइट्स पे लेके जाते हैं, उनको हम अपने फार्म्स पे लेके जाते हैं। उन बच्चों को, कॉलेज स्टूडेंट्स को, जो बॉटनी के बच्चे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे आते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के बच्चे आते हैं, अभी भी बहुत सारे इंटर्नशिप्स, हमारे अराउंड 40 इंटर्न्स आए हुए हैं वेरियस यूनिवर्सिटी से। तो उनको हम सॉइल में काम कराते हैं, उनके हाथ गंदे करते हैं, हाथ गंदे करने का मतलब सॉइल में काम कराते हैं, उनको पानी के साथ काम कराते हैं, उनको पॉन्ड्स के बारे में बताते हैं, उनको एक्वा कल्चर जो प्लांट्स हैं, एक्वेटिक लाइफ है, वेटलैंड एरियाज हैं, इनको कैसे संजो के रखना है, इनको कैसे प्रोटेक्ट करके रखना है। सो इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ ह्यूज थिंग। लेकिन आपके लिए बस मैं एक ही बात करूंगा, सर, आई विल बी वेरी वेरी ग्रेटफुल अगर आप सिर्फ 2 चीजें करें। As a club, as a thing, I know you will have funds and you will go out and you will plant. आप tree guards भी afford कर सकते हैं, आप जाके मुंबई में कुछ 100, 200, 400, 500, 5000 पौधे भी लगा दें। But I think more than that, please अपने रूफटॉप्स को, अपनी बैल्कनीज को, अपने रूम्स के एरियाज को, अपने ऑफिसेस को, अपने फैक्ट्रीज को, अपने इंडस्ट्रियल एरियाज को, जहां हो सके, जितना हो सके, जो उगा सकते हैं आप उगाइए। ग्रीन means chlorophyll. Chlorophyll means photosynthesis. Photosynthesis means good air. And the whole process starts. ठीक है, जो वाटर साइकिल है आपका, एयर का है, एयर वाटर साइकिल, एवरीथिंग गेट्स टेकन केयर। सो बस यही कहूंगा कि प्लीज ग्रो समथिंग। एंड लास्ट चीज, kindly, this has been my one little request that I make. For the past 20 years I've been struggling with this. Please, and you as Rotary, I know you can really help and you can take this campaign forward. Please don't use disposables. Soil के अंदर इतने माइक्रोप्लास्टिक्स आ चुके हैं, माइक्रोप्लास्टिक जो है अल्टीमेटली रूट सिस्टम में जाते हैं, वो अल्टीमेटली प्लांट लाइफ में आते हैं, वो अल्टीमेटली आपकी बॉडी में आते हैं। आई ऑलवेज यूज, मैं स्टील में पानी पीता हूँ, स्टील में चाय पीता हूँ। I carry in my rucksack, in my bags, I always carry a plate and a steel का ग्लास। कहीं पर भी मेरे को कोई डिस्पोजेबल में कॉफी देता है, चाय देता है, मैं चाय का बहुत शौकीन हूँ, मैं दिन में 30-40 कप आराम से पी जाता हूँ। तो मैं हमेशा अपना स्टील का ग्लास उनको ऑफर करता हूँ। उनको थोड़ा सा अजीब लगता है। अभी मैं रेडिसन ब्लू में था, 5 स्टार होटल में, तो उन्होंने कहा सर ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा नहीं बेटा, मैं तो ब्लू में ही, मैं चाहे तू रेडिसन में पड़ा या ताज में पड़ा, मैं तो अपने स्टील के ग्लास में पीऊँ। सो आई थिंक जो हम ये डिस्पोजेबल कल्चर है शादी ब्याह में, वो थर्मोकोल की जो आप हम प्लेट्स यूज करते हैं, ये कल्चर
आप सेट कीजिए, आप एक कैंपेन लॉन्च कीजिए, आप, क्योंकि आपको लोग सुनेंगे। आप सेलिब्रिटीज हैं, आप अपने अपने फील्ड में अव्वल नंबर पे, यू आर एट दी, यू आर एट द टॉप ऑफ द पिरामिड, आपकी बात सुनेंगे। हमारी बात कभी कभी हो जाता है, अरे पीपल बाबा है, ये तो पीपल के पेड़ लगाता है, जंगल में रहता है, ये जब देखो पेड़ 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 करता रहता है, तो वो कभी कभी होता है कि वो प्लास्टिक की बात सुनते नहीं है। लेकिन सर, हम पर्यावरण की ही बात कर रहे हैं, हम इनडायरेक्टली डायरेक्टली पर्यावरण की ही बात कर रहे हैं। आप जब प्लास्टिक्स को देखिए, प्लास्टिक इज अ वंडरफुल थिंग। मैं अभी भी एक प्लास्टिक की ही कुर्सी पे बैठ के आपसे प्लास्टिक के लैपटॉप पे ही बात कर रहा हूँ। प्लास्टिक प्लास्टिक गलत चीज नहीं है, लेकिन जो सिंगल यूज प्लास्टिक, और प्लास्टिक को प्यार से यूज कीजिए, उसको रिस्पेक्ट के साथ यूज कीजिए। मैं आई एम नॉट इन फेवर ऑफ बैनिंग प्लास्टिक, नो, नेवर। हाँ, लेकिन जो डिस्पोजेबल्स, आप उसको तो हम उसका एक सोल्यूशन ढूंढे। हर चीज में हम कहते हैं बैन कर दो, बैन कर दो, बैन। अरे बैन क्यों कर दो? आप उसका कोई सोल्यूशन ढूंढिए, कोई अच्छा सोल्यूशन ढूंढिए, कोई लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सोल्यूशन ढूंढिए, एंड दैट इज स्टील। साफ करने में आसान, रखने में आसान, अनब्रेकेबल, गिर जाए, पड़ जाए, कुछ भी हो जाए। मैं तो 20 साल से 2 स्टील के ग्लास और 2 प्लेट लेके पूरा भारतवर्ष और पूरा यूरोप घूम के आ गए सर, अभी भी जिंदा हूँ। People over, sir, we are absolutely enjoying your chat. चल, But ओके, before we rush out to plant trees, itna hai charge okay, we must, there are some questions that I'm sure ओके, a lot of our people have. बताइए। So some of the questions that are coming up is sleeping under the tree is not. It is observed that sleeping under the tree at night is not as healthy because carbon dioxide is emitted. What is your opinion on that? I have slept all my life under trees. So okay, ऐसा so कुछ नहीं, there's ठीक है, no. होता है, साइंटिफिकली इट इज राइट, ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है। उसका मतलब ये थोड़ा ना कि और कोई हवा ही नहीं होगी वहां पे। भाई ब्रीज भी चलती है, विंड भी चलती है, खुली हवा में आप हैं, आप, ऐसा नहीं होता। जंगलों में जो लोग रहते हैं, इसका मतलब तो ऐसे तो एनिमल लाइफ सारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वहां तो घना जंगल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा नहीं। I can very confidently say, because since I have spent more than 80% of my life in forests and under the trees, because most of the time हम जब लेट हो जाते थे रात को काम करते करते, तो हम पेड़ों के ऊपर ही सोते थे, पेड़ों के नीचे ही सोते थे, तो ऐसा कुछ नहीं, nothing like that. Then I think couple of other people have raised their hands. I think Anand Gupta ji and Neeta Ganguly. Can you unmute them, Tejas, so they can ask their questions? Sir, can I ask? Yeah, go ahead. Sir, आपने कहा कि राइट नाउ कुछ 10% ही ग्रीन कवर है देश में और आवश्यकता 50% की है, तो आपके नजरिए में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी बनाए जिससे ये टारगेट एक कोई पर्टिकुलर टाइम में पूरा हो? I won't ये देखिए, गवर्नमेंट जो होती है ना, वो टेंडर पे चलती है, ठीक है, तो छोड़िए उस चीज को। आई थिंक अगर हम सिर्फ लोगों को जागरूक करें, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने इतने लगाए, मैंने बहुत लोगों को देखा, हमने 250 एनजीओ का इनॉग्रेशन किया है पिछले 44 सालों, उन्होंने इतना बढ़िया काम किया। I think a people's movement is required, and there is no pressure like people's pressure. लोग जागेंगे, सरकारों को तो उनके लिए काम करना ही पड़ेगा। सरकारें क्या करेंगे? अभी जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, या जितने भी हाईवेज हैं, हाईवेज पे आपको पेड़ नजर आते हैं? एक्सप्रेसवेज पे पेड़ नजर आते हैं आपको? कहाँ आते हैं? आपको मालूम है 1% of the entire project cost you are supposed to do tree planting. ऑडिट्स भी होते हैं, ऑडिट पे सिग्नेचर्स भी हो जाते हैं, पूरे इंडिया में सिग्नेचर्स हो जाते हैं। क्या जी, हाँ है, पेड़ है, देख लो, ढूंढ लो, कहाँ है पेड़, ढूंढ लो, मेंटेन नहीं किया जाता। वही तो बात है ना, वही तो बात। सही, ये सरकार का काम नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड, इट हैज टू बी अ पीपल्स मूवमेंट, ये लोगों को करना पड़ेगा। जान किसकी जा रही है? लोगों की जान जा रही है। कितने पॉलिटिशियंस मरे ड्यूरिंग कोरोना, और कितने लोग मरे कॉमन मैन? तो लोगों को जागना पड़ेगा, लोग जागेंगे, ठीक है, लोग जागेंगे तो सरकारें भी जागेंगी। बस मैं बहुत एक सिंपल सी बात कह रहा हूं, इसीलिए
I believe in citizens participation, I believe in citizen movements, I believe in social organizations, I believe in religious organizations जो काम कर, अभी हम संत निरंकारी मिशन के साथ काम कर रहे हैं, एक दिन में उन्होंने 1.5 लाख पेड़ लगाए, एंड हमने खुद, क्योंकि ट्रेनिंग दी थी, मैंने खुद सारा, मैं एजुकेशन पार्टनर हूं उनका, तो हम लोगों ने देखा 337 हमने ट्री क्लस्टर्स एक दिन में 21 अगस्त को हम लोगों ने क्रिएट की। तो सर क्या ये इस धर्म से कनेक्ट किया जाए? हाँ जी, पेड़ लगाने से पुण्य मिलेगा और सीधा स्वर्ग मिलेगा? सर ये तो आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी, आपने बहुत गहरी बात कह दी। आप अगर कर सकते हैं और लोग कर सकते हैं, और एक बात बताऊं, ये कहने की बात नहीं है, ये रियलिटी है। और स्वर्ग सर जिसकी बात करते हैं, स्वर्ग तो यही बना सकते हैं अगर हमारे पास अच्छा पर्यावरण हो, अच्छा इकोसिस्टम हो, अच्छी पक्षियां हो, हमारी हेल्थ अच्छी हो। यू नो द बेस्ट एनवायरमेंटलिस्ट दुनिया में कौन से हैं? अगर हम अपनी हेल्थ के ऊपर काम करें, हम अपनी हेल्थ को सीरियसली लें, हम अपनी हेल्थ को अगर सीरियसली लेंगे तो व्हाट डू वी नीड? 3 थिंग्स। वी नीड हेल्दी एयर, हेल्दी वाटर, हेल्दी सॉइल टू बी हेल्दी एंड हैप्पी इन लाइफ। तो इन तीनों चीजों के लिए जब आप काम करेंगे, आप तो खुद ही एनवायरमेंटलिस्ट हो। सो टू हैव अ हेल्दी लाइफ वी नीड अ हेल्दी एनवायरमेंट। इफ यू वांट टू लिव, इफ यू वांट टू, ये तो हमारी जिंदगी, ये इट इज नॉट एनवायरमेंट सर, इट इज सर्वाइवल। ये तो सर्वाइवल है। ये चीज आपको सरकारों को सुनाना, और आपके जैसे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, आपकी बात फिर भी पॉलिसी मेकर सुनेंगे। आपकी बात, हमारी बात नहीं कोई सुनता, आपकी बात जो है वो फिर भी सरकारें सुनेंगी, फिर भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सुनते हैं, बिकॉज आप लोगों ने कुछ अचीव किया है लाइफ। हम तो सारी जिंदगी बस पेड़ ही लगाते रहते। Next question is Neeta Ganguly. Yes, thank you, पीपल बाबा जी। आपके साथ मेरा बहुत सारे चीज कॉमन है, मगर 2 मैंने कैच किया है। मैं भी एएमसी ऑफिसर की वाइफ हूँ जो रिटायर कर, मेरे फादर इन लॉ भी एएमसी में थे, तो आई एम श्योर वो भी मेडिकल कोर में थे, सर्जन थे, तो वो जरूर जानते होंगे आपके पिताजी को। और सालों के विहार का भी वही कनेक्शन, घर मेरा उधर ही है, वहां पर अल्टीमेटली जाएंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया अगर देखा जाए तो सबसे टॉप इंपोर्टर है पाम ऑयल का, ठीक है। और हम जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि इंडोनेशिया और मलेशिया का क्या हालत हुआ है ये पाम ऑयल के बेच के, और इंडिया भी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि वो खरीद रही है उस पाम को। 2017 से ये शुरू हुआ कि इंडिया भी अपना खुद का पाम ऑयल ग्रो करेगी। सब 13 स्टेट्स है जहां पर कि पाम ऑयल कल्टीवेशन शुरू हो गया है। और नॉर्थ ईस्ट को हम बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट एक जगह जहां कोई डेवलपमेंट नहीं है। तो क्या डेवलपमेंट पेड़ काटना होता है और मकान बनाना डेवलपमेंट कहते हैं? वो अंडर डेवलप्ड है क्योंकि वो जंगल काट रहे हैं, और जैसे ही जंगल काटेंगे वहां डेवलपमेंट आ जाएगी, क्योंकि वहां हम मोनोकल्चर लगाएंगे। तो लोग कहते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, एक पेड़ काट रहे दूसरा पेड़ लगा रहे हैं, पाम ऑयल लगा रहे हैं ना। तो ये इसको बताइए, इसको कैसे बताएंगे कि एक बायोडाइवर्सिटी किस तरह से स्पॉइल हो जाता है? अगर आप, वो भी पेड़ है ये भी पेड़ है, मगर दोनों में बहुत फर्क है, एक मोनोकल्चर और एक बायोडाइवर्सिटी। तो आप ये किस तरह यूथ को समझाएंगे? नहीं, ये तो बहुत आसान है, एक ही लाइन में हम समझाते हैं, और हम समझाते आ रहे हैं लोगों को। देखिए, पर्यावरण के साथ धंधा मत कीजिए, दुकानदारी मत कीजिए, फिर वो भी आपको बहुत कुछ करेगा, है ना। हो क्या गया है कि हमने इकोसिस्टम्स को और अपने जमीन को और अपनी हवा को, अपने पानी को हम बिजनेस के दायरे में ले आए, एंड वी आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट मनी। प्रॉफिट मोटिव जो है, इट इज ड्रिवन कंप्लीटली। हिंदुस्तान जो है ना, अनफॉर्चुनेटली इस समय 2 चीजों पे चल रहा है, प्रॉफिट मोटिव पे चल रहा है और इलेक्शन मोटिव पे चल रहा है। जो भी हम पॉलिसी बना रहे हैं, इट इज आइदर इलेक्शन ड्रिवन और इट इज प्रॉफिट ड्रिवन और टैक्स ड्रिवन और व्हाटएवर यू कॉल इट। हम भूल गए हैं कि आप पर्यावरण को इस डिपार्टमेंट से बाहर रखिए। आप कॉमर्स डिपार्टमेंट में पर्यावरण को मत लेकर आइए। अगर आप पर्यावरण से छेड़छाड़ करेंगे तो वो आपके पूरी पॉपुलेशन का बिजनेस खराब करके रख देगा।
we are so hell bent on earning money, we are so hell bent on earning money. जो आप कह रहे हैं बात, ये एक बहुत सीरियस बात. I really hope that sense prevails on the government. आप मध्य प्रदेश में 1300 एकर्स हेक्टेयर्स में आप फॉरेस्ट निकाल के क्या ढूंढ रहे हैं? आप हीरा ढूंढ रहे हैं. हीरा, ठीक है. अच्छा, यहाँ तो कोई हमें ये कहता कि भाई वहाँ स्कूल बनेगा, कॉलेज बनेगा, मेडिकल कॉलेज बनेगा, वहां पर कोई गवर्नमेंट का कुछ योगा आश्रम बनेगा या कुछ भी बनेगा, समथिंग रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स. आप पत्थर निकाल रहे हैं, एक चमकीला पत्थर निकाल रहे हैं और पूरा का पूरा आप जंगल बर्बाद कर रहे हैं. तो सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि आप कर क्या रहे. अच्छा, एक चीज आपको मैं समझाऊं. आई डोंट गेट डिस्टर्ब बाय दिस. यू नो व्हाई? ये चीज मैं टॉपिक एक्चुअली उसी वक्त बोलना चाहता था. मैं वेरी क्विकली बोलता हूँ, नहीं तो प्रवीण जी वो मुझे कहेंगे कि जल्दी से बंद कीजिए. आप फिक्र मत करो, कर लेने दो उनको, कर लेने दो. हमने किया तो वायरस महाराज जी आ गए, कर लेने दो उनको. जो करेगा वो भुगतेगा. और मैं आपको एक बात बताऊं, 44 मैं अभी इनफैक्ट मैं एक किताब लिख रहा हूँ इस समय. इट्स कॉल्ड अंडर द पीपल ट्री. उसके मैंने कुछ चैप्टर्स लिखे हैं. जब एक साल मुझे और लगेगा. उसमें मैंने बहुत सारे इंसिडेंट्स बताए हैं मेरे ही अपने रिश्तेदारों ने, मेरे ही अपने फ्रेंड्स ने, जिन्होंने जंगल काट काट के फार्म हाउसेस बनाए, जंगल काट काट के फैक्ट्रियां डाली, जंगल काट काट के उन्होंने अपने बंगलोज बनाए. बंगलोज के अंदर एक बेचारा पुराना नीम का पेड़, पुराना एक आम का पेड़, पुराना एक जामुन का पेड़, वो भी काट काट के उन्होंने अपने मार्बल फिटिंग्स की ताकि उनका लेक्सस गाड़ी खड़ी हो पाए. उनका वो बुरा हाल हुआ. कौन सी दुनिया की बीमारी नहीं जो उनको लगी. उनकी वाइफ, उनके बच्चे, उनकी फैमिली. मैं अब ज्यादा इस चीज के ऊपर मैं नेगेटिविटी नहीं प्रमोट करना चाहता, बट लेट देम डू इट, लेट देम डू इट. और आपको एक बड़ी मजेदार बात है, इसके ऊपर तो पीएचडी होनी चाहिए, किसी को पीएचडी करनी चाहिए. जितने भी NHAI के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो पेड़ काटने में माहिर, आप उनकी फैमिली हिस्ट्री देख लीजिए, उनकी खुद की सेहत हिस्ट्री देख लीजिए, आप उनकी खुद की हेल्थ देख लीजिए. दे हैव नॉट लिव्ड टू टेल द टेल इन द नेक्स्ट डिकेड. तो ये कर्मों का फल है. हम सोचते हैं कि वनस्पति चेतना को, पेड़ों को, वृक्षों को काट पीट के हम अपना बड़ा जी, हम लोगों ने पैसे अपने बैंक में जमा कर लिए. भाई साहब, बहुत बुरा हाल होगा. सो आई थिंक दिस इज समथिंग ऑफ अ वेरी डीप सब्जेक्ट. मैं इस तरह से इसको शैलो वे में नहीं पुट करना चाह रहा, बिकॉज दिस इज समथिंग आई टॉक अबाउट in sessions for 1.5 hours and 2 hours just on this topic. So I think ये कर्मों का खेल है. अगर आप एक्शन रिएक्शन की बात है, अगर आप गलत करेंगे आपके साथ भी गलत होगा, आप अच्छा करेंगे आपके साथ अच्छा ही होगा. So don't worry, let them do it and let them whatever. Thank you so much. I just want to say this was the same question. My twin is also in this thing. She's a Rotarian from Calcutta. और coincidence ये कि उसने भी palm oil के बारे में पूछा और मैंने भी पूछा. So just a coincidence. Thank you so much. That's because you're from the same route. No Yes. pun intended. And she's a Rotarian from Calcutta and she's also joined the meeting. Right. Great. So I think that was Deepa Gandhi. fantastic. Praveen, do you have a question or he's already answered? I just need one question from People Baba. People Baba. That's the last question though. Yeah. Go ahead, please. Go ahead. But वो पूछूंगा मैं भी People Baba. So मैं पहले भी स्तब्ध था, आपसे मिलकर आज भी स्तब्ध हूँ सर. कोई फर्क नहीं है, मतलब you are the same People Baba, amazing speaker that you are. People Baba sir, दो क्वेश्चन है. Sikkim and Bhutan tried their hand on organic farming, and as a result, the production went down, and they had to import the shortfall. What do you say on that? Point number one. Point number two, when you plant trees, sir, so how do you get permissions for the land? Do you actually plant trees on private lands? So military एक अलग चीज है, armed forces का land अलग चीज है, but otherwise how do you get permissions for the land? ओके सर, पहली बात तो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे बात करेंगे, जैसे सिक्किम ने किया, उनकी प्रोडक्शन फॉल हुआ. लेकिन आप प्लीज अंडरस्टैंड, काइंडली अंडरस्टैंड दैट दीज आर थिंग्स, दीज आर करेक्टिव मेजर्स. ठीक है,
अगर थोड़ा सा प्रोडक्शन कम हुआ तो क्या हुआ, एटलीस्ट यू आर ईटिंग हेल्दी, एटलीस्ट द स्टेट इज हेल्दी, द सिटी इज हेल्दी, द पॉपुलेशन इज हेल्दी, योर चिल्ड्रन आर हेल्दी, योर फ्यूचर जनरेशंस आर गोइंग टू बी हेल्दी. So even if you have to import a few items from the neighboring states, what's the problem? It is good. It is good for the economy. It is good for the economy of the neighboring state also. We need to go organic. India needs to go organic. मैं organic word नहीं use करूँगा. Organic itself is a business. वो certifications करो, ये करो, इसको पैसा खिलाओ, उसको पैसा खिलाओ. No, no. I am saying natural farming. I am only saying one thing. If people understand, that is, don't use chemical fertilizers. Don't use pesticide, don't use weedicide, don't use poison. आपके पास गोबर खाद है, आपके पास वर्मी कंपोस्ट है, आपके पास मल्चिंग है, आपके पास, you know what happens is when you start doing so called organic, we forget our traditional wisdom. हम बहुत ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करना शुरू करते हैं. अगर आप पुरानी विजडम, ट्रेडिशनल विजडम, द वे इंडियन फार्मिंग हैज हैपेंड, अगर आप उसको यूज करें, इंडिया कैन हैव अ फैंटास्टिक फ्यूचर. इट कैन हैव वेरी गुड एग्रीकल्चर आउटपुट एंड इट कैन हैव अ वेरी 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 हेल्दी पॉपुलेशंस फॉर द फ्यूचर जनरेशंस. नंबर 1. नंबर 2, आपने कहा परमिशंस का. आई हैव नेवर टेकन परमिशंस ऑफ माय लाइफ. मुझे एक बात बताइए, आप पेड़ काट तो रहे नहीं हैं, ठीक है, आप पेड़ काटने की परमिशन लेते हैं, पेड़ उगाने की परमिशन की जरूरत नहीं है. हाँ, पर क्या होता है सर, दिस इज an excellent question that you have asked and I would like to conclude and I would like to end the session today with this answer. All my life, this is one thing my grandfather, my grandmother and my Mali kakas and the farmers I worked with, they taught me. अगर ऊपर हाई टेंशन वायर है, नीचे कोई पाइपलाइन है, नीचे कोई वाटर पाइपलाइन है, एकदम फुटपाथ बगल में है, सिविल स्ट्रक्चर है, कोई वॉल है, किसी की प्राइवेट स्पेस है, कुछ है, डोंट प्लांट इट. ठीक है. एंड दिस इज वन थिंग आई लर्न ड्यूरिंग माय साइकिलिंग टूर ऑफ नेदरलैंड्स. वहां पे एम्स्टरडैम में एक गुरिल्ला प्लांटिंग का एक मूवमेंट चला. तो वहां पर जो शाम को डॉक्टर्स होते थे, मेडिकल डॉक्टर्स है, वो इकट्ठे होते थे रात को 10 बजे गाड़ियों में सैपलिंग्स भर के, जिसके पास भी जगह होती थी, जहां पर भी जिसके बंगले के सामने छोटे छोटे, यू नो, इसीलिए एम्स्टरडैम अगर आप गए हैं वहां पर, आई एम श्योर यू मस्ट हैव गॉन, इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी ग्रीन सिटी. सो आई लर्नड अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दैट. बी इंटेलिजेंट. जब आप काम करना शुरू करेंगे तो आप कोई भी ऐसी चीज नहीं करेंगे जिससे आपके पेड़ों को लॉन्ग रन में हार्म. ठीक है, क्योंकि यू वुड लाइक टू सी द ट्री ग्रो इनटू अ फुल फ्लेजेड कैनोपी महाराज वृक्ष, है ना. आप चाहेंगे, आप बच्चा जब पैदा करते हैं तो आप कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे कि बच्चे की हेल्थ खराब, राइट. तो परमिशंस, हाँ, अगर तो आपको हॉर्टिकल्चर वाले परमिशन देते हैं, फॉरेस्ट वाले परमिशन देते हैं, और आजकल बहुत अच्छे हो गए. लेट मी टेल यू, द गवर्नमेंट इज quite sensitive on these things, and you will, and as Rotary, nobody will say no to you, I can assure you. I work with Rotary in Delhi. I work with Rotract in Delhi. We are doing about I think 1400 plants this week for them, and permissions ki kabhi problem. You are a very respected organization. They will never this thing. As far as other people are concerned, if they work intelligently, आपके नेशनल हाईवेज हैं, स्टेट हाईवेज हैं, आप देखो कहाँ पर आपका बड़ा वाला डिवाइडर है, उसकी हाइट कितनी है, आपके पास सॉइल कितनी है, कौन सी स्पीसीज वहां लगाई जा सकती है, किस चीज को आप कौन सा, जरूरी नहीं है कि वहां पर हर जगह आप पीपल लगाओ, बड़ लगाओ, बड़ा वाला पेड़ लगाओ, आप छोटा पेड़ लगाइए. आप बहुत छोटे छोटे पेड़ होते हैं, फ्लावरिंग ट्रीज होती हैं, आप वो लगाइए. सो उसमें थोड़ी साइंटिफिक, थोड़ी बॉटनिकल नॉलेज आपको चाहिए. कौन सा वज्रदंती है, करोंदा है, आप कौन सी चीज कहाँ हेज में यूज करना है, कहाँ. द आइडिया इज टू इंक्रीज द ग्रीन कवर. परमिशंस की बात आती है, आपने ठीक कहा, कैंटोनमेंट्स में. सी, वंस यू आर सीरियसली वर्किंग ऑन समथिंग, पीपल अप्रोच यू. एंड मजेदार बात यह है कि पीपल इनवाइट अस टुडे. आज भी हमारे पास 500-600 इनवाइट्स की वेटिंग लिस्ट है. लोग, कॉलेजेस हैं, स्पेशली हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड से लोग हमें, स्कूल के प्रिंसिपल्स हमें लिखते हैं कि प्लीज आइए, मेरे पास जगह है 2000 पेड़ों की, आप बेशक 1000 पेड़ लगवा दीजिए. हम कहते हैं नो सर, अगर आपके पास 2000 की जगह है, हम 2000 पेड़ लगा के जाए.
हमें थोड़ा सा फंड इकट्ठा करने दीजिए, हमें डोनेशन इकट्ठा करने दीजिए, हमारे बैंक में थोड़े पैसे आ जाए, हम वो पैसे लेकर आते हैं, आपके वहीं पर ही पास नर्सरी से सैपलिंग खरीदेंगे और आपको 2000 पौधे लगवा के जाएंगे। आपको जो आप खरीद सकते हैं वो आप खरीदें। सो पीपल टेक यू सीरियसली, है ना। अगर सी हार्ड वर्क इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एंड योर सीरियसनेस एंड योर कंसिस्टेंसी। अगर रोटरी का भी एक वो बन जाता है, देखो दे आर वेरी गुड एट मेंटेनेंस, रोटरी इज वेरी गुड विद प्लांटेशन, दे आर वेरी सीरियस अबाउट प्लांटेशन। I think even the government will call you, and they will also call you, and they will write to you. DFOs will write to you, horticulture directors will write to you, and they will say, please sir, come, we have a piece of land, you please put up your boards over there, do your branding and kindly plant over it. And this is what has been happening. अभी हमने जो संत निरंकारी मिशन के साथ जो काम किया है, 337 letters of intent, 337 government permissions taken within 20 days. So your organization, मैं बार बार इस बात को कहना चाहूंगा, I want to highlight this fact, you are very fortunate, you are very lucky, you are a very respected organization, and if you approach the government, nobody will deny permission to you. Superb, superb. I think, of course, we'll go to the formal vote of thanks, but it was really enjoyable, and we really appreciate the passion with which you speak. So I think we were thinking about having some programs in which we encourage our members to grow trees. So I think Praveen will contact you to get ideas from you as to have some of our members, say maybe with their grandkids or so, plant a tree. So that will be a nice memory for the years to come as it grows. Yes, sir.